Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Agri Addict. I am your mentor Ari Prasad. So this video is going to be very special for all our audience. ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है. द रीज़न बिहाइंड इज लाइक वी हैव सक्सेसफुली क्रॉस 1000+ satisfied enrolled learners in our platform for the year 2025 and 2026. And as you can see, there are a lot of feedbacks. The many feedbacks have been given by the students about the satisfaction that they have received from the platform Agri Addict. As you can see, there are around 500+ reviews on our Play Store application, and also there are 1000+ successful satisfied enrolled students who are currently taking our online courses and preparing for the ICAR PG exam, PhD exam and the ASRB NET exam. So this is a very good milestone that we have created, and this is because of the complete support of you people, because of your support and also because of the consistent efforts of our mentors. So we are able to reach at this milestone. Hopefully, like in the coming days, we will be able to serve the फ्यूचर स्टूडेंट्स ऑल्सो इन द ओवर द कमिंग ईयर्स. जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, लाइक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल बिकॉज in this video I'm going to give you a complete details on how to clear the ICAR PG exams. I'll be talking about the eligibility, I'll be talking about the exam syllabus, or I'll be talking about the list of books that has to be referred. ये चीज़ तो आपको हर जगह मिल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और कौन कौन से बुक्स रेफ़र करना चाहिए. ये सब तो ऑलरेडी इंटरनेट पे है, बहुत सारे वीडियोस भी बने हुए हैं. लेकिन मैं इस वीडियो में मैं ये शेयर करने वाला हूँ कि क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, कैसे आप कंसिस्टेंटली इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हो. नो मैटर लाइक आप 2025 एग्ज़ाम लिख रहे हो, 2026 एग्ज़ाम लिख रहे हो, या यू आर राइटिंग दिस एग्ज़ाम इन एनी ऑफ द अपकमिंग ईयर्स, अनटिल द सिलेबस चेंज नहीं होगा, that time you can watch this video, and this video will be like one stop solution for all your problems related to the plant sciences, that I can assure you. And this is a very special video because of the reason, as I told you, like we have successfully crossed 1000+ enrolled learners on our platform. Still now, if you have not yet enrolled to our online course and you are preparing for the ICAR PG exam, the PhD exam, the ASRB NET exams, so kindly visit our website www.agriaddict.in. Here you can see that we have several courses starting from the ASRB NET. We have the ICAR PG courses, ICAR PhD courses. We also have the premium mock test bundles for the ICAR PG exams, the general agriculture mock test, and also most importantly, we also have the free mock test for the different exams of ICAR PG and the PhD and ASRB. You can attend any of these mock tests just by enrolling it for free. एंड इफ़ यू गेट इंटरेस्टेड, आपको अगर इंटरेस्ट आएगा कि आप लोगों को लगता है इस प्लेटफॉर्म से आपको कुछ मदद मिले, देन यू कैन एनरोल अवर ऑनलाइन कोर्सेज एंड टेक अ फुल बेनिफिट. तो kindly, and I would definitely suggest you to come to our platform, just try your things, and if you are satisfied you can enroll to our online courses. That will definitely boost your preparation and you can be the next all India topper. अगर आप लोगों को कुछ वीडियोस देखने हैं बिफोर एनरोलिंग टू और एनी ऑफ आवर कोर्स, all our videos for all our subjects are available in our YouTube channel under a dedicated playlist. हर एक सब्जेक्ट का एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसमें हर एक सब्जेक्ट का वीडियोस रहेंगे, आप वहाँ पे देख सकते हो. उसके बाद आपको इंटरेस्ट आए, देन यू कैन कम टू आवर प्लेटफॉर्म बाय सर्चिंग www.agriaddict.in, और यू कैन डायरेक्टली download our mobile application either through the Android or through the iOS, and download our mobile application through which you can either go for the free content or you can also download the study planners, the previous year question papers, and if you are interested you can go for the online master courses. And also one more thing, like we have added a blog section here. So in this blog section we will be adding all the details of the several different exams under the agriculture. काफ़ी कुछ एग्जाम्स का डिटेल्स हम यहाँ पे देंगे. तो इफ़ यू आर वांटिंग टू गेट द डिटेल्स, यहाँ ब्लॉग सेक्शन पे आ जाओ, और यहाँ पे जो कैटेगरीज, लाइक इफ़ यू आर एबल टू सी द कैटेगरीज हियर, यू कैन क्लिक ऑन द category and watch or read those blogs so that you will have a good understanding about the exam that you are going to deal. जो भी आपको एग्जाम डील करने होंगे उस एग्जाम के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेगा. यहाँ पे क्लिक करके पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हो, और उसका रिलेवेंट लिंक्स भी रहेगा. वहाँ पे जाके आप पूरा ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हो कि कैसा इसका रिक्रूटमेंट होता है और क्या प्रोसेस होगा. सारे डिटेल्स इस ब्लॉग्स में मेंशन्ड है, यू कैन चेक इट आउट. ओके, so what's special about this video? As I told you, this video is going to be very special, since I'll be talking about everything that is related to the ICAR PG plant sciences, and this will be the one-stop solution for all your problems in the plant sciences. एक बार इस वीडियो को देखने के बाद you need not to watch any other video to get a guidance for the plant science.
even if you are going for a self study or if you are taking our AgriEdit course, for both the students this video will be lot more beneficial. So stick with me until the end of the video so that you get the maximum benefit. उससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ भी और बोलना चाहूँगा कि आप लोग ऑलरेडी अगर डिसाइड कर चुके हो कि आपको प्लान साइंस में या किसी और सब्जेक्ट में पीजी या पीएचडी करना है और आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो, देन आई विल बी गिविंग यू अ स्पेशल कूपन कोड on which will be applicable to all our online master courses which you can apply and get a maximum discount. एक कूपन कोड मैं लास्ट में रिवील करने वाला हूं. अगर आप लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि आपको ICAR-PG एग्जाम, पीएचडी एग्जाम या ASRB नेट एग्जाम को देना है, देन यू कैन wait till the end of this video, watch the complete video and get the coupon code and get the maximum discount in our online courses. And the course का वैलिडिटी कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा. कोर्स का डिटेल्स, कोर्स में क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे और इसके कौन कौन से डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं और कितना डिवाइसेस अलो करते हैं और इसका क्या पॉलिसी है, सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा उस पर्टिकुलर कोर्स में. यू कैन जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द कोर्स, रीड द डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली and you can enroll directly. Once after enrolling, you will be getting a WhatsApp message about the successful enrollment through which you can join our WhatsApp master group. WhatsApp group is very very special because ये WhatsApp group जो है ये डेडिकेटेडली बनाया हुआ है पेड एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए. जो भी स्टूडेंट्स एनरोल रहेंगे हमारे कोर्सेज में, जो भी हमारे क्लासेस अटेंड करेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस देखेंगे, उनको ज़्यादा कुछ बेनिफिशियल होगा क्योंकि हर रोज़ इस व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन होते रहेंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने आप से मतलब क्वेश्चंस को पोस्ट करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे और हमारा मेंटर्स टीम जो भी है वो गाइड करते रहेंगे हर बार सही आंसर को निकालने के लिए और सही से गाइड करने के लिए. इस तरह के चीज़ों से आपका प्रिपरेशन भी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा और अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा. यू विल बी गेटिंग अ कॉन्फिडेंस बाय डूइंग सच थिंग्स इन्वॉल्विंग द ग्रुप डिस्कशंस. दैट्स वाई our master groups of WhatsApps are also very important that you can get access to once you are enrolled to our online master course. And students, if you are preparing for this exam in 2025, 2026, अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आप लोग अपकमिंग ईयर्स में भी प्रिपेयर कर रहे हो, अनलेस एंड अनटिल द सिलेबस चेंज होगा, तब तक यही वीडियो वैलिड रहेगा और जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सब कुछ आपके लिए होगा. और इस वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिल सके और आपको सही से पता चले कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और इसका क्या डिटेल्स है और एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है और क्या एग्ज़ाम का सिलेबस है और सिलेबस के बाद क्या क्या बुक्स को रेफ़र करना होगा इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए. सारा डिटेल्स इस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा. अगर आप लोग कोई दूसरा सब्जेक्ट्स का ढूंढ रहे हो, वी हैव कम अप विद द सेम पैटर्न. हमने सेम पैटर्न में इस वीडियो को लॉन्च किए हैं जहाँ पे A to Z फॉर प्लांट साइंसेस, A to Z फॉर एग्रोनॉमी, A to Z फॉर एंटोमोलॉजी, A to Z फॉर द सोशल साइंस, हॉर्टिकल्चर. ऑल ऑफ देम विल बी अपलोडेड. सम ऑफ देम आर ऑलरेडी अपलोडेड. यू कैन वॉच दोज वीडियोज एंड if you get any doubts related to what I discuss in this video, if I miss anything that you feel, anyhow I won't be missing anything on this in this video, but still if you have any specific doubt on this exam or any other things in the agriculture exams, you can always post on this comment on this video, so we will be happy to assist. तो स्टार्ट करते हैं ICAR-PG एग्जाम के बारे में डिटेल्स. सो आई विल बी कीपिंग इट कम्प्लीटली बायलैंग्वेज, सो थोड़ा स्लो हो सकता है, तो यू कैन सी इट इन अ फास्ट फॉरवर्ड मूड ताकि आपको मिनिमम टाइम में ज़्यादा कुछ कंटेंट मिले. ओके, सो आई विल बी गिविंग यू द कंप्लीट डिटेल्स. लाइक द video will be bit slow since I'll be covering in both the languages, so you can put it in a fast forward mode and watch the complete video, but do not skip the video if you are a serious aspirant of the ICAR-PG, PhD and the ASRB net exam. And this video is specifically for the ICAR-PG exam for the subject of plant sciences. Why I'm saying this is because we have a highest success rate in the previous years, where in the previous if starting from the 2022, 2023 and 2024, so we have given the top ranks in this ICAR-PG exams for the plant sciences and all other subjects. So this video will be a lot more beneficial because we have an expert team who are guiding the students from the past 3 years. So this will be a lot of benefit to all of you. Okay, start करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में. So we'll start with the exam pattern. It is called as the ICAR-PG exams. So that will be conducted. Who will conduct this exam? It is conducted by the NTA, the National Testing Agency. And like कब ये एग्जाम कंडक्ट होगा? This exam will be conducted usually in the month of June or July. एग्जाम डेट होगा जून या जुलाई में मैक्सिमम, अगर सारा स्केड्यूल सही रहा तो. लाइक
ईयरली शेड्यूल अगर एनटीए का सही रहा, सारे एग्जाम टाइम टू टाइम हो रहे, तो लाइक इट विल बी इन जून और जुलाई। ओके, दिस विल बी द एग्जाम डेट। तो एप्लीकेशन कब तक निकलेगा? द एप्लीकेशन विल बी रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। कभी कभी थोड़ा डिले भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली इट विल बी रिलीज्ड इन द मार्च एंड अप्रैल। जब एप्लीकेशन रिलीज करेंगे, आपको क्या क्या चीज़ें रखना चाहिए और कैसे अप्लाई करना चाहिए, ये सब चीज़ें जब एप्लीकेशन रिलीज होगा तब एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा जहाँ पे मैं A to Z एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे लॉगिन करना है, कैसे रजिस्टर करना है, क्या प्रोसेस होगा एप्लीकेशन का। तो वहाँ पे आप उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन के बारे में। तो अभी उसका टेंशन मत लो, डू नॉट वरी अबाउट इट, जस्ट pay attention to the syllabus pattern, eligibility and the how to prepare for this exam. Okay, and if you have not yet subscribed to our YouTube channel, then subscribe our YouTube channel so that you will be getting all the updates related to the all agriculture exams including ICAR PG exam. अभी से लेके प्रिपरेशन से लेके अपना सीट अलॉटमेंट तक, वी आर हियर टू हेल्प यू। वी हैव हेल्प द स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस ईयर, एज यू कैन सी और प्रीवियस ईयर वीडियोस, and definitely will be also helping you people irrespective of whether you have registered our course or not. जो भी स्टूडेंट्स रजिस्टर किया होगा या नहीं किया होगा, जो भी हमारा यूट्यूब का ऑडियंस है, उन सब के लिए हम वीडियो निकालेंगे जहाँ पे हम क्लियर कट गाइड करेंगे कि आपको कैसे एप्लीकेशन को डालना होगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगा और किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन मेनली रहेगा वो सीबीटी। सीबीटी क्या होता है? सीबीटी इज लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका मतलब आपको एग्जाम कंप्यूटर में दिया जाएगा या लैपटॉप में दिया जाएगा। समटाइम्स लाइक सम सेंटर्स उसमें टैब भी देते हैं, तो इट विल बी कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड। ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जहाँ पे आप जाके एग्जाम लिखना होता है। ये OMR बेस्ड एग्जाम नहीं है। अर्लियर इट वॉज OMR बेस्ड बिफोर 2018, बट नाउ करेंटली इट इज़ नॉट OMR बेस्ड एज ऑफ 2024, इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम क्या होगा? इसका टोटल ड्यूरेशन विल बी 120 minutes or the 2 hours, and total number of questions will be also 120. So this means you will be having 120 questions to be solved in 120 minutes. That means for the each question, how much time you have? You have 1 minute for one question. This is the time for this ICAR PG exam. और टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? इसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही रहेंगे, जहाँ पे आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिस पे आपको एक सही ऑप्शंस को चुनना होगा। ओके, एंड व्हाट विल बी स्कोरिंग? अगर जो भी स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चंस को राइट करेंगे तो उनको +4 मार्क्स मिलेगा। अगर जो भी स्टूडेंट्स इसको एक क्वेश्चन को रॉन्ग करने से -1 डायरेक्ट हो जाएगा। और टोटल मार्क्स जो होगा इसके अकॉर्डिंग 4 into 120 इट विल बी 480 मार्क्स। टोटल मार्क्स होगा 480 में, और एवरी राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है, और एवरी रॉन्ग आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलता है एवरी राइट आंसर के लिए, और एवरी रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग अटेंड नहीं कर रहे हो, फॉर नॉट अटेम्प्टेड 1 यू विल बी गेटिंग 0 मार्क्स, देयर विल बी नो लॉस ऑन दैट। ओके, एंड ये भी एक बहुत कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के मन में कि कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम होता है। अगर आपको पता हो कि जो MSc एंट्रेंस है वो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं MSc एंट्रेंस का। अगर MSc एंट्रेंस के बारे में आपको आइडिया है एग्रीकल्चर में, इफ़ यू हैव एनी आइडिया अबाउट द MSc एंट्रेंस एग्जाम्स इन इंडिया फॉर agriculture students, agriculture, horticulture and allied, so you might be knowing that ICAR will conduct only one exam, which is currently called as ICAR AIEEA PG exam, which is conducted by the NTA के द्वारा ICAR कंडक्ट करवाता है इस एग्ज़ाम को। और यही एक सोलो एग्ज़ाम है जो ICAR कंडक्ट करता है। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस इज़ वेयर थ्रू दिस एग्ज़ाम यू विल बी गेटिंग द ICAR PG फेलोशिप। तो फेलोशिप के बारे में भी पूरा डिटेल में बात करेंगे अपकमिंग स्लाइड्स पे। दिस इज अबाउट द वन एग्जाम दैट इज कंडक्टेड बाय द ICAR। उसके अलावा भी लाइक देयर आर एग्जाम्स विच विल कंडक्ट द MSc और विच विल गिव यू द सीट आफ्टर राइटिंग द एग्जाम। सो वन मेजर एग्जाम आफ्टर ICAR PG इट इज CUT PG एग्जाम। तो CUT PG एग्ज़ाम ऐसा तो लाइक बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, स्ट्रीम्स के लिए बनाया जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है। अगर आप लोग एग्रीकल्चर में भी देना चाहोगे तो यू कैन गिव द CUT PG एग्ज़ाम। बट द डिफरेंस इज द ICAR का जो एग्ज़ाम है ये मेनली और ये ओनली इंग्लिश में रहेगा। अगर आप CUT का एग्ज़ाम का बारे में बात करेंगे तो उसका लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में भी रहेगा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस के बारे में मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हुए होंगे, लाइक देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन वेदर द ICAR PG इज बायलिंगुअल और द CUT PG इज बायलिंगुअल।
So you have kind information, it is a CUET PG which is the bilingual, and ICAR PG will be only conducted in the English language. Okay, so this is all about the exam pattern. Next, let's come to the eligibility. अगर आप लोग प्लांट साइंस से एग्जाम लेना चाह रहे हो, एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि आप लोग अगर प्लांट साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होता है कि प्लांट साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, और स्टार्टिंग से ही आपको ऐसा होगा कि आपको एक सब्जेक्ट पसंद है, कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डू परस्यू योर MSc इन GPB, और स्टूडेंट्स सर्च कर लेंगे कि GPB का कोई एंट्रेंस एग्जाम है क्या ICAR PG में। ऐसे तो अगर आप लोगों को PG में एंट्रेंस लेना, PG में एडमिशन लेना है, लाइक इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन द PG फॉर द सब्जेक्ट ऑफ GPB और एनी अदर सब्जेक्ट्स like plant pathology and seed science and technology and agriculture microbiology, and there is one more subject which is PGR, which is only available at IARI. Okay, so if you are wanting to enroll yourself in any of these 5 different courses, then you have to write a single exam with the subject stream name called as plant sciences. Okay, so you have to write the exams of plant sciences. आपको एक एग्जाम लिखना होगा अंडर ICAR PG विच इज़ द प्लांट साइंस। इस एग्जाम को लिखने के बाद आपको बेस्ड ऑन योर रैंक, आप कितना रैंक निकाल रहे हो इस एग्जाम पे इन द प्लांट साइंसेस, यू विल हैव अ ऑप्शन टू चूज एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, एंड मोस्टली द स्टूडेंट्स जो टॉप में आएंगे वो GPB ही चूज करेंगे या पैथोलॉजी चूज करेंगे। उसके बाद आता है माइनर सब्जेक्ट्स जिसको स्टूडेंट्स चूज करते हैं। इसलिए अगर आपको GPB चाहिए होगा या पैथोलॉजी चाहिए होगा, देन यू हैव टू सिक्योर अ वेरी गुड रैंक इन दिस एग्जाम, एंड द वन एग्जाम फॉर ऑल दिस सब्जेक्ट्स इज द प्लांट साइंसेस। अगर आपको ICAR PG में GPB करना है या पैथोलॉजी करना है, सीड साइंस करना है, AMB करना है, AMB इज एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, और PGR विच इज ओनली अवेलेबल एट IRI, यू हैव टू राइट दिस सिंगल एग्जाम विच इज द प्लांट साइंसेस एग्जाम। ओके, अगर नेक्स्ट द प्लांट साइंस एग्जाम लिखने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? You should have the eligibility of 4 years degree in your BSc Agriculture. तो BSc Agriculture जो आपका डिग्री होगा वो 4 years का होना चाहिए, और you can be a BSc Agri, Horti, Forestry student, और even you can be a Biotechnology student. ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ BSc Agriculture student ही प्लांट साइंस को लिख पाएंगे या GPB या पैथोलॉजी को ले पाएंगे। Even if you have completed your UG from the Horticulture, the Forestry or the Biotechnology which is BTech, so you can write this exam. and इसमें भी 2 अलग अलग चीज़ें हैं, जिसमें कहीं डिग्री ऐसा दिया जाता है कि BSc एग्रीकल्चर सिर्फ डिग्री होगा BSc एग्रीकल्चर, कहीं ऐसा भी होता है कि लाइक द डिग्री वुड बी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। So do not keep any confusion on this, whether it is honors or it is just the BSc agriculture. Both the students will be eligible to write this exam, but the system is they should be having mainly 10+2+4 system. ये सिस्टम होना चाहिए उनके पास कि 10th तक उन्होंने कवर किया हो, उसके बाद 2 साल का 11th एंड 12th किया हो, और उसके बाद 4 साल का BSc एग्रीकल्चर डिग्री किया हो। ठीक है, ये एक हो गया मेन एलिजिबिलिटी, दिस इज द मेन एलिजिबिलिटी, बट स्टिल वी हैव द अल्टरनेट एलिजिबिलिटी। अल्टरनेट एलिजिबिलिटी क्या है? अल्टरनेट एलिजिबिलिटी में ऐसा है कि आप लोग अगर 3 साल का भी BSc एग्रीकल्चर किए हो, even then you are eligible, but the condition is you are only eligible at IARI. IARI is the premier institute of India that you already know, which is already also a deemed university. तो इसमें जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो रूल्स है वो अप्लाई यहाँ पे नहीं होगा, तो यू कैन ज्वाइन दिस डीम्ड यूनिवर्सिटी इवन इफ यू हैव कंप्लीटेड द 3 years डिग्री फॉर योर UG. सो दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर IARI for your degree for genetics and plant breeding, plant pathology, seed science, and also as I told you like PGR, the plant genetic resource. But the thing is, plant genetic resource is not offered by any of the other state agriculture universities. ये अदर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी ऑफर नहीं किया होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है ओनली एट IARI. ओके, हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जहाँ पे हम PGR के बारे में बात किए हैं कि इसमें अगर MSc कर रहे हो या PhD कर रहे हो कि इसका क्या स्कोप है। अगर उस वीडियो को आपको देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा और ऊपर पिन कमेंट में भी अभी आएगा, क्लिक करके वहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट, जब भी आप एग्जाम लिखते हो, एक क्वेश्चन तो आपको मन में आया ही होगा, लाइक यू विल बी गेटिंग दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल राइट द एग्जाम एवरी ईयर।
तो आप अगर प्लान साइंस में लिख रहे हो देन द डेफिनेटली क्वेश्चन विल बी लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स एवरी ईयर, द हाउ मेनी बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अलाइड साइंस स्टूडेंट्स विल राइट दिस एग्जाम फॉर द प्लान साइंसेस, और कंपटीशन कितना होगा, एक क्वेश्चन होगा सबके मन में, राइट। सो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस आई विल गिव यू अ पिक्चर अबाउट व्हाट इज द कंपटीशन लेवल फॉर द प्लान साइंसेस। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट साइंस के लिए, ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स राइट इट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको कंपटीशन का ही पता नहीं हो तो देन देर इज नो पॉइंट लाइक हाउ विल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, बिकॉज सिंस इट इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम वेर यू हैव टू कॉम्पीट विद अदर्स, यू हैव टू नो द एग्जाम pattern, you also know should be knowing the competition in the exam. So ICAR PG एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर स्टैट्स मैंने लाइक इसमें 2023 का स्टैट्स लिया है। अगर हम 2024 लाइक इफ वी टॉक अबाउट द 2024 स्टैट्स, इसमें अगर आप बात करेंगे थोड़ा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें, मैं बताता हूँ क्यों है। So according to the 2023 stats, the total number of students who have written this ICAR PG exam is 24,948. It is almost equal to 25,000 students have written this ICAR PG exam. This was according to the 2023 year, but the previous year, which was 2024, approximately 40,000 students have written this exam. There is almost a double in the number of students who have written this exam in the 2024. So the major reason behind this is द रिमूवल ऑफ द अक्रीडेशन रूल्स। पहले से तो ऐसा था कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, जहाँ से आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी और द कॉलेज आईसीआर से अक्रीडेशन होना चाहिए था, कि आईसीआर अक्रीडेशन करना चाहिए था उस यूनिवर्सिटी में जिसके अंडर आप पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन 2023 के बाद 2023 में ही इस रूल को मतलब कैंसिल किया है, जहाँ पे अब कोई भी स्टूडेंट चाहे वो या मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हो, सारे स्टूडेंट्स एग्जाम को निकाल के बेस्ड ऑन द मेरिट दे कैन टेक अ सीट इन द एनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग द IRA. So this is the change eligibility. Because of this change eligibility, now you can see there is almost 50% rise in the number of students who have written this exam in the last 2 years. अगर आप पूछोगे कि 2025 में कितने लोग लिख सकते हैं, then you can definitely expect around 50 to 60,000 students who will write this exam. मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वी आर देयर इन द सिस्टम फ्रॉम पास्ट 3 to 4 years. मैं इस क्लासेस को स्टार्ट किया था 2022 में, तब से मैं स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ. आई कैन सी द राइज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. पहले से ऐसा था कि बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि क्या एग्ज़ाम है, और काफ़ी लोग इसको सीरियसली भी नहीं लेते थे बिकॉज ऑफ द गैप इन द एग्रीकल्चर जॉब्स एंड द वैकेंसीज. बहुत लोग अभी मन बना लिया कि आपको अगर बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो एमएससी के बाद ही मतलब जॉब ढूंढेंगे, मिनिमम डिग्री तो हम एमएससी लेके ही जाएंगे. सो बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट एंड बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट इन द एमएससी एंड द पीएचडी, like the number of students who are writing this exam is rising from year to year. So why I am stressing this, because you have to understand the level of competition. So based on this, अगर total number of students who have written the exam is around 40K for around almost 20 different subjects. जैसे कि प्लांट साइंस है, ऐसा ही हमें तुम्हें पता होगा तो तुम लोगों को पता होगा तो देर विल बी ऑल्सो एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, लाइक सॉइल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. लाइक देर आर सेवरल अदर सब्जेक्ट्स. देर आर अराउंड 20+ सब्जेक्ट्स दैट आर अवेलेबल फॉर द ICAR PG एग्जाम्स. कुल मिला के 40,000 स्टूडेंट्स लिखे हैं. तो उसमें प्लांट साइंस का कितने लोग लिखे होंगे, लाइक द अप्रॉक्सीमेटली बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर स्टैट्स एंड आवर एक्सपर्टीज, आई कैन से दैट देर आर ऑलमोस्ट 4,000 to 5,000 students who have written this exam in the previous years. ऐसे तो हमें लाइक जब हमने रैंक प्रेडिक्शन का फॉर्म निकाला था, लाइक इफ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो, जस्ट वॉच द रैंक प्रेडिक्शन वीडियो वंस, द लिंक्स विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इसमें ऑलमोस्ट 2,000+ स्टूडेंट्स ने फिल किया था इस फॉर्म को. तो इस बार ऑलमोस्ट वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स हु इज राइटिंग द एग्जाम्स. सो वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड द स्टूडेंट्स. तो इस बार का जो रैंक प्रेडिक्शन होगा और भी मतलब ज़्यादा एक्यूरेट होगा. सो बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस we have made estimate that there are overall 4,000 to 5,000 students who will write the exam for the plant sciences. Okay, so this is the level of competition for which you have to prepare yourself. ऐसा अगर हम बाकी जो एग्जाम्स है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, लाइक वी हैव अ नीट एग्जाम, जेई एग्जाम और यूपीएससी भी एग्जाम है जो कॉम्पिटेटिव जॉब ओरिएंटेड एग्जाम है. तो जितने भी अलग अलग एग्जाम्स है उसके अकॉर्डिंग तो ये जो एग्ज़ाम है हमारा काफ़ी कम लोग लिखते हैं. और आप टेंशन मत लो कि आपका होगा या नहीं होगा. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि आप कंपटीशन देख रहे हो जिस सिर्फ और सिर्फ 4,000 to 5,000 है इसमें. और कुल मिला के प्लांट साइंस में कितने सीट्स होंगे, लाइक एवरी ईयर देयर विल बी अराउंड 400 to 450 सीट्स. थोड़ा फ्लक्चुएट करेंगे 400 450 के बीच में, लेकिन ओवरऑल
for all the 5 subjects. It is not for only single subject. For all the 5 subjects, including the GPB, plant pathology, or AMB, the seed science and technology, and the PGR. कुल मिला के आपको लगभग ICR के सीट्स कितने होंगे? It will be around 400 to 450 सीट्स will be there. तो उसमें एक और डिफरेंस है. जैसा मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज अराउंड 400 प्लस. मान के चलो 400 प्लस ICR का सीट्स है, तो आप एग्जाम लिख रहे हो, तो इफ़ यू गेट अ रैंक विद इन अ 400, यू विल हैव अ गुड चांस टू गेट सीट इन एनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एनी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, और इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज लाइक IRA, NDRI, अदर्स, राइट. तो इसमें जो है 400 प्लस में सिर्फ और सिर्फ करीब करीब 100 to 120 सीट्स है जिसमें आपको ICR PG फेलोशिप मिलता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लोग लाइक इफ़ यू आर राइटिंग दिस एग्जाम with the motive that you need to be financially independent and you have to do your own, like you have to manage your own expenses for your MSc, that's why you are writing this exam, then get to know that only the top 100 students will get this ICR PG fellowship based on which subject they are choosing. हर एक सब्जेक्ट में नंबर ऑफ फेलोशिप सीट्स है वो डिफर करता है. मैक्सिमम तो GPB एंड पैथोलॉजी में है, देन द माइनर सब्जेक्ट में कम सीट्स है जो फेलोशिप के सीट्स है, एंड कुल मिला के ये 100 प्लस बन जाएंगे. अप्रॉक्स 100 to 110 सीट्स होंगे जो फेलोशिप का सीट्स होंगे. उसके अलावा स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करेंगे उनका क्या? अगर आप लोग आपका रैंक थोड़ा कम है लेकिन फिर भी आपके ICR के अंडर सीट मिल रहा है, then you will be eligible to take another fellowship which is called as NTS fellowship, which is the National Talent Fellowship. तो लेकिन इसमें कुछ एलिजिबिलिटी का प्रॉब्लम है. इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आप NTS फेलोशिप चाहिए, लाइक इफ यू नीड द NTS फेलोशिप, देन कंपल्सरीली यू हैव टू परस्यू योर MSc फ्रॉम द स्टेट आउटसाइड योर नेटिव. जो हमारा तुम लोगों का नेटिव स्टेट है, नेटिव इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेयर यू हैव बॉर्न, वेयर यू हैव द डोमेसाइल सर्टिफिकेट. नेटिव स्टेट जो है उसको वहाँ पे आप करोगे तो NTS नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाओगे, लेकिन यू कैन डू योर MSc, can pursue your MSc through the ICR counseling in your state only. But if you want this NTS fellowship, if you are not getting the PG fellowship, then compulsorily you will have to go out of the state. अगर like if you are securing very good rank, अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है, like you get within top 100, within top 10, top 20, then you will be eligible to get the ICR fellowship no matter where you take. Within a state you take, outside a state you take, you will be getting this fellowship. Apart from these two, there is one more good opportunity in the recent years for getting the fellowship. I will be telling this in one of the upcoming slides. Stick with me until the end. Okay, that will be the bonus for you. Many of might be already knowing it, but if you do not know it, so you will be knowing after this video. So this is all about the exam analysis that we have made from our platform AgriEdit. Now नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि चलो एग्जाम के बारे में तो पता चल गया, एलिजिबिलिटी पता चल गया, नेक्स्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी पता चल गए, और वी गॉट टू नो द कंपटीशन, लाइक वी गॉट टू नो अबाउट द एलिजिबिलिटी, द कंपटीशन लेवल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड फेलोशिप सीट्स. व्हाट नेक्स्ट? द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द ड्रीम ऑफ most of the students, most of the aspirants who are preparing for this exam would be definitely coming into the IRI for their PhD and the MSc. So ये बहुत लोगों का मन में होगा. जब आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे एक टाइम पर तो ज़रूर मन में आया होगा कि व्हाट इफ़ लाइक आई गेट IRI, व्हाट इफ़ आई वांटेड IRI. तो क्यों ऐसा है कि सब लोग IRI में आना चाहते हैं? लाइक व्हाट्स मेकिंग इट सो मच फेमस दैट एवरीवन वांट्स टू कम इनटू IRI? क्या ऐसा फैक्टर्स है जो IRI पे नहीं है, कहीं और नहीं मिल रहा है एट द करंट स्टेज? एंड वन मोर थिंग आई हैव टू से दिस, the IRI is the heart of AgriEdit, where most of our mentors who are providing the valuable guidance and the teaching to you people, our juniors, we are mostly from the IRI who have secured the top rank in this ICR PG and the PhD exams. So they have pursued or they have finished or completed their masters or the PhD from this premier institute, which is the very good thing for you people if you are taking the guidance from the platform AgriEdit. So most of our mentors who are providing the online classes for you people are all from IRI. So that's why I say the IRI is the heart of AgriEdit. Okay, so these are our main mentors who will be handling the different courses. We are the complete team and in हमारे टीम में लगभग 50+ mentors है जो डेडिकेटेडली कोर्स कंटेंट को कवर करेंगे, वीडियो लेक्चर्स देंगे, मॉक टेस्ट बनाएंगे और स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल कराएंगे और टेलीग्राम पे क्विज कंडक्ट कराएंगे और आपका डाउट क्लियर सेशंस रहेगा उसको कवर करेंगे.
सारे चीज़ें जो करते हैं वो सारे टॉप रैंकर्स है इस ICAR PG एग्जाम में, जो उन्होंने खुद क्लियर करके आए हैं. So whoever are the mentors in our platform, all of them have completed their MSc or pursuing their MSc and the PhD, who have secured the top rank in this exam, and they are guiding you people. So that's the one good thing about the AgriEdit. Okay. So the number of seats, अगर मैं IRA के बारे में बात करूंगा, like why IRA? I did not answer this question. अगर आपको लगता है कि IRA में ऐसा क्या है जो दूसरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में नहीं है, क्या इतना डिफर कर रहा है कि सब लोग IRA में आना चाह रहे हैं, या कंपटीशन इतना क्यों है कि जो भी रैंक 1 है, रैंक 2 है, हमेशा IRA ही जाता है. जो आप लोगों को अगर ट्रेंड देखोगे, लाइक इफ यू सी द ट्रेंड इन द प्रीवियस ईयर, यू सी दैट whoever has secured the top rank in this exams, they will be obviously coming into IRA. Only then they think of other agriculture universities. So what is the reason behind this? See, firstly, it is because of the academic level, the teaching level, and the interaction, the exposure with the eminent scientists, which makes it different from the other state agriculture universities or any other institutes. And it's about the research infrastructure and the facilities that you have, where like you will get an opportunity to do a very novel work in this premier institute. And what are the other factors which will also make the IRA the best, based on the research accomplishments that are being done in the previous years? अगर आप लोग देखोगे, लाइक बहुत सारे ऐसे वेराइटीज होंगे जो IRA से ही मतलब रिलीज किए होंगे, बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजी होगा जो IRA से ही बनाया हुआ होगा, और इसका जो अलुमिनी नेटवर्क है बहुत सारा स्ट्रांग है, जहाँ पे आप लोग अगर प्रीवियस ईयर का स्टैट्स देखोगे, जो भी IRA से पास आउट हुआ हो वो कोई ना कोई अच्छे मतलब जॉब में रिक्रूटेड हुआ हो और अच्छे पोस्ट में चला गया हो. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ IRA, विच विल ड्राइव ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू कम इन टू द IRA. एंड द एनवायरमेंट हियर इज सो गुड फॉर, अगर आप लोग रिसर्च में कमिटेड हो देन ऑल्सो इट इज़ सो गुड. अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को भी प्रीफर कर रहे हो देन ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड. एंड द फूड सिस्टम, it is obviously the one of the sweetest and tastiest food that we get in any of the hostel, that you can get in any of the hostel, that I can say. So because of these reasons, the IRA would be the best place for the students who will be looking forward to pursue their MSc and the PhD. ऐसा तो आपने सुना भी होगा, तुम लोगों का सीनियर से बताए भी होंगे, लेकिन I wanted to say it everyone very proudly that this is why IRA is the #1 institute for the agriculture studies. ओके, तो नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर आपको IRA आना है तो कितने सीट्स होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में इन द प्लांट साइंसेस. लाइक हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ प्लांट साइंसेस इफ यू आर वांटिंग टू कम इनटू IRA. Just like for plant sciences, in the first subject, which is the plant breeding, the total number of ICAR seats in the IRA are only and only 6. इसमें केवल 6 सीट्स ही है जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए है, वो भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स. इन दैट द टोटल सीट्स फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी विच इज जनरल इज जस्ट 2. अगर आप लोग जनरल पे हो, जनरल कैटेगरी के बिलोंग करते हो और आप लोग इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, then you have to secure either rank 1 or rank 2 in order to get the seat in the IRA for genetics and plant breeding. So this is the level of competition. And for SC there is 1 seat, ST 1, OBC 2, EWS, PWD 1 seat. So these are the list of seat. UPS ऐसा होता है कि हर साल चेंज होता है, लाइक दिस इज बेस्ड ऑन द 2024 स्टैट्स. ये जो UPS EWS को थोड़ा कुछ चेंजेस मिलने को मिलता है कि आप ईयर टू ईयर थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा. तो ये सारा डिटेल्स कहाँ मिलेगा, लाइक वेयर यू विल बी गेटिंग ऑल दिस डिटेल्स. सी, वंस यू राइट द एग्जाम, वंस यू गेट द रिजल्ट्स, आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट्स देयर विल बी ICAR काउंसलिंग ब्रोचर. एक काउंसलिंग ब्रोचर होगा जो रिलीज होगा, जिसमें आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा इस एग्जाम के बारे में. ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स होगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो पार्टिसिपेट करेंगे, इसका सारा डिटेल्स इट विल बी अवेलेबल इन द ICAR काउंसलिंग ब्राउचर. सो दिस इज फॉर द जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग. एंड इसमें और एक रूल भी है, दिस इज कॉल्ड एज 40% रूल, दैट इज फॉर द डोमाइसल स्टूडेंट्स. डोमाइसल स्टेट का कुछ रूल है. तो मैं क्या करूँगा, जो भी ICAR PG एग्जाम्स का जनरल इन्फॉर्मेशन है उसको मैं अलग से एक वीडियो बना के उसमें सारा चीज़ क्लियर करूंगा, जहाँ से मैं बात करूंगा कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, लाइक व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स यू नीड इफ यू आर अपीयरिंग फॉर दिस ICAR PG एग्जाम, व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द रिजल्ट्स, बिफोर द रिजल्ट्स,
एवरीथिंग इन डिटेल एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आपको सीट लेना होगा। तो बहुत सारे ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। देर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो दैट आई विल कंपाइल एंड मेक इट इन अ सिंगल वीडियो, सो दैट विल हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ICAR PG एग्जाम्स और जनरली द ICAR एग्जाम। नेक्स्ट द प्लांट पैथोलॉजी का भी डिटेल्स है कि इसमें पिछले ईयर में 7 सीट थे, इसमें 3 अनरिजर्व थे, एक SC ST और 2 OBC का था, एंड देन इट वाज लाइक 1 EWS एंड 1 PWD। सो दिस इज फॉर द ओनली ICAR IARI which we are talking about. And for similarly for microbiology there were only 3 seats, one for unreserved, one for SC, one for OBC NCL and other one for the EWS. Okay, and you might be confused here, like यहाँ पे तो total 3 seats है, लेकिन how come this are 4 now? This is because the EWS will be considered within the ER only. Okay, in some cases the EWS will be considered ER only, they will be giving the total number but still they will consider this as one extra. EWS थोड़ा एक्स्ट्रा मानेंगे, कभी कभी उसको UR में भी इंक्लूड करा दिया जाएगा. सो यू हैव टू लुक क्लियरली इन योर ICAR काउंसलिंग ब्रोचर ऑफ द ईयर इन विच यू आर गेटिंग द एडमिशन. ओके. Next, for the seat signs, there are total of only 4 ICAR seats. 2 are for unreserved and SC1 and OBC1. So this is for the IARI number of seats according to the 2024 counseling. तो 2025 जो काउंसलिंग आएगा उसका ज़्यादा कुछ सीट्स का डिफरेंस नहीं होगा. देयर विल बी नो लॉट ऑफ डिफरेंस इन द सीट्स, देयर विल बी 1 or 2 डिफरेंस. So you have to make up your mind that if you want to take IRI for your MSc, then you have to definitely secure within a rank of 1 to 10 for the major subjects like GPB or SST. अगर आपका कुछ कैटेगरी है then it's okay, but if you are belonging to either general, UR, OBC or the EWS, then you have to definitely secure 1 to 10 for the major subjects like GPB and pathology. And for minor subjects, like you should be securing within 50. अगर within 50 रहेगा और less than 50 रहेगा, then you have a very good chances to get into AMB or SST, that is Seed Science and Technology. अगर आपका कैटेगरी है then it is a different thing, but if you are belonging to UR, EWS or OBC NCL, this is the thing. And for mostly the competition would be for UR. So if you are from unreserved or a general category students, then you have to definitely secure a very good rank to get the IRI. ओके, तो नेक्स्ट द एलिजिबिलिटी में और एक क्वेश्चन आता है कि देयर विल बी वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द CGPA. अगर आप लोग BSc एग्रीकल्चर खत्म कर रहे हो तो कितना CGPA होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर दिस ICAR PG एग्जाम, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू टेक दिस सीट्स अंडर द ICAR. अगर आपका 10 पॉइंट स्केल है तो देन यू हैव टू गेट मिनिमम ऑफ 6.6 in your UG, and this is for the general OBC, UPS and the EWS. And if you are from the SC, ST, PWD or third gender, then it can be 5.6. And all other details for the different point scales are mentioned, and mostly the state agriculture universities will have the 10 point scale. So it should be 6.6 for the most of the categories like general, OBC, EWS and UPS, and all other categories it is 5.6. तो सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है जो आपको यहाँ पे भी मिलेगा और ICAR के NTA ब्रोचर पे मिलेगा. ब्रोचर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया जाएगा. यू कैन गो एंड जस्ट चेक इट वंस. इसके अलावा अगर आपका BSc एग्रीकल्चर परसेंटेज में हो या मार्क्स में हो, देन you have to at least get 60% and above in order to be eligible for getting the seat from the ICAR exam. Okay, I hope this is clear, so make a note of it. Next question comes, what is the age limit? So age limit should be above 19 years as of 31/8/2024 in order to be eligible to appear in this examination and get the seat. Okay, and there is no upper age limit. अब कितने भी एज होगा आप लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम एज लिमिट इज मोर देन 19, लाइक मोर देन और इक्वल टू 19, नॉट बिलो 19. अगर 19 से कम है तो आप लोग इस एग्जाम को अपियर नहीं कर पाओगे. एंड कोई भी कैटेगरी हो, जो भी कैटेगरी होगा इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सारे कैटेगरीज के लिए लाइक 19 इज द लिमिट, 19 इज द बेस अबोव विच ओनली द स्टूडेंट्स कैन राइट द एग्जाम, 19 एंड अबोव. नेक्स्ट अभी आएगा कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप विच इज प्रोवाइडेड बाय द ICAR, इट इज मेनली 2 डिफरेंट टाइप्स. जो ICAR जो फेलोशिप प्रोवाइड करता है वो मेनली 2 डिफरेंट कैटेगरीज में है. एक तो है विच इज कॉल्ड एज ICAR PG फेलोशिप. इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के लिए. क्यों इसको ICAR PG फेलोशिप को बहुत बार सुना होगा आपने कि यू हैव हर्ड दैट इट इज कॉल्ड एज JRF फेलोशिप.
Now why we are calling it as ICAR PG fellowship? Recently, over the past 4 to 5 years, this name is changed and currently ICAR is using it as PG fellowship. ICAR PG scholarship or the fellowship. So JRF, do not get confused, it is not used for the PG students now, it is JRF and the SRF. You might be seeing these terms in the PhD entrance exam which is conducted by the ICAR itself. But for the PG, now the fellowship which is provided or the scholarship which is provided is called as ICAR PG scholarship. Next, what amount, कितना अमाउंट मिलेगा इसमें आपको? Like you will be getting 12,640 per month, 12,640 per month for the period of total of 2 years. अगर आपका जो MSc है वो एक्सटेंड हो जाता है 2 years से ज़्यादा, then you will not be getting the fellowship after the extended period. Only from the day of the examination you will be getting the scholarship up to 2 years, no matter whether you complete your MSc or not. Okay, only for 2 years. एंड कंटीजेंसी इसका मतलब है कि आप ट्रैवलिंग पे जो भी आप खर्चा कर रहे हो, बुक्स पे, पेन ड्राइव पे, कुछ भी विच इज रिलेटेड टू द रिसर्च एंड द एकेडमिक्स, दैट यू कैन क्लेम एंड सबमिट द बिल्स फॉर विच यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम ऑफ 6,000 पर ईयर. एंड कितने साल के लिए? ये भी 2 साल के लिए रहेगा. एंड दिस इज द वन इंपॉर्टेंट फेलोशिप दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ICAR फॉर विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी इंटरेस्टेड इन. अगर आपको बाय एनी चांस आपका मार्क्स कम आ गया, रैंक कम आ गया, इफ यू आर नॉट एलिजिबल टू फॉर ICAR PG फेलोशिप, स्टिल यू कैन गेट द फेलोशिप विच इज द NTS फेलोशिप. लेकिन इसका एलिजिबिलिटी जैसा मैंने बताया, लाइक यू हैव टू परस्यू योर MSc इन अ स्टेट आउटसाइड योर नेटिव, only then you will be able to, or you will be eligible to get this scholarship. This is only for scholarship. अगर आपको सीट लेना है तो आप कहीं पे भी ले सकते हो, लेकिन आपको फेलोशिप चाहिए NTS का, then you have to go outside your state from where you have done your, or where you have done your studies. Okay, studies मतलब अगर UG आपका NEET, for example, if you belong to a state Karnataka, if I belong to state Karnataka, but if I have done my UG in other states, for example, I have done it in Kerala, so for PG, whether I can go back to Karnataka or I have to do it in Kerala for getting the NTS fellowship. So for PG, you can again take the seat in the same universities of the Kerala where you have done the UG and get the NTS, because this is anyhow outside the domicile state. आपका domicile जो state है, मेरा जो है वो कर्नाटका है, मेरा state का certificate जो बना हुआ है वो कर्नाटका का बना हुआ, then I will not be able to take the seat within Karnataka and get this NTS. अगर मुझे NTS चाहिए, then I have to go for any other स्टेट अदर देन कर्नाटका. मैं केरला में भी कंटिन्यू कर सकता हूँ या कोई और स्टेट में भी जाके मेरा MSc कंटिन्यू कर सकता हूँ. ओके, सो दिस इज अबाउट द NTS. जैसा मैंने बोला, देयर इज अ बोनस. आप लोग अगर कोई और फेलोशिप के बारे में बात कर रहे हो तो देन इट इज़ द IRA फेलोशिप. वाई इट इज़ रिसेंटली गॉट पॉपुलराइज्ड? बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ द IRA हब्स. So there are around 16 plus hub as of now, and some of them are offering the MSc and the PhD degree. अगर आपको जो भी आपका रैंक हो, जितना भी हो आपका रैंक, अगर आप लोग ICAR से आपको IRA या हायर किसी हब में मिल गया सीट, मान के चलो आपको कोई भी हब में मिल गया, irrespective of like whatever the rank is, but it is through the ICAR, it should be through the ICAR, then you will be eligible to get the 7,500 per month for 2 years plus contingency of the 10,000 for 2 years. जो आपका रहेगा ये 10,000 नहीं, 6,000 for 2 years. 2 years का आपका पर ईयर 6,000 मिल जाएगा. वो डिफर करता है कि इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट, लेकिन लगभग 6,000 पर ईयर यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एडमिटिंग टू द IRA or its hubs, who are not eligible to ICAR fellowship. They will be getting the IRA fellowship. This is only for the students who will be getting admitted to IRA or its hubs, and for all other state agriculture universities you will be getting the NTS fellowship only if you are getting the seat, taking the seat in the state outside your state domicile. Okay, and NTS में कोई भी कंटीजेंसी नहीं मिलेगा. कंटीजेंसी जो मिलता है, जो ICAR PG फेलोशिप में मिलता है और IRA फेलोशिप में ही मिलता है. ओके, नेक्स्ट, सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी, द स्कॉलरशिप डिटेल्स. हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट कम्स अबाउट द एग्जाम्स. कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होंगे, लाइक व्हाट विल बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गेट इन दिस एग्जाम. अगर आप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करोगे, लाइक इट विल बी मेनली डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस, मेजॉरिटी डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस रहेंगे. अगर मान के चलो अगर आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 है, जैसे हमने ट्रेंड देखा है प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस पास्ट 3-4 ईयर्स का, जो लगभग आपका डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे 40 to 50. समटाइम्स इट माइट बी लेस देन दिस, like less than 40 to 50 questions will be direct multiple choice,
एंड उसके बाद लाइक असर्शन रीजनिंग मिलेगा आपको 20 to 25, एंड ये भी मिल सकता है कि अरेंजिंग द करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करने वाला क्वेश्चन भी मिल सकता है, एंड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी मिलेगा, और मैच द फॉलोइंग भी मिलेगा. इट विल बी अराउंड 5 to 10 मैच द फॉलोइंग जो रहेगा. एंड अदर पैटर्न विल डिफर, लाइक अदर स्टाइल विल डिफर फ्रॉम द पैटर्न टू पैटर्न, लाइक पेपर टू पेपर, फ्रॉम ईयर टू ईयर, बेस्ड ऑन द पेपर सेटर. ठीक है, तो ये हो गया टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ये सारे टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ऑल ऑफ दिस आर मल्टीपल चॉइस ओनली. सब मल्टीपल चॉइस ही है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा. दैट्स इट. यू हैव टू चूज one option from the 4 at the end of the day, but the way they are asking the questions, it would be different. Okay, so this is about the type of questions. next अभी हम बात करते हैं कि क्या सिलेबस है प्लांट साइंस के अंडर. ओके, द एग्जाम सिलेबस. तो ICAR एग्जाम सिलेबस फॉर द PG एग्जाम इन द सब्जेक्ट ऑफ प्लांट साइंसेस. प्लांट साइंस का क्या सिलेबस होगा ICAR PG एग्जाम के लिए, और ये सिलेबस कॉपी कहाँ पे मिलेगा आपको. अगर आपको इस सिलेबस कॉपी को डाउनलोड करना है, देन यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन द लिंक दैट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन डाउनलोड द एग्जाम सिलेबस. सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड टेक द सिलेबस कॉपी. एंड आई वुड रिकमेंड यू, लाइक मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसको सिलेबस कॉपी को अपने पास रखो और इसको अच्छे से एनालाइज करो. लाइक एनालाइज इट प्रॉपरली एंड सेग्रीगेट द टॉपिक्स based on the subjects that you are going to read, and based on that whatever topics that are mentioned in the syllabus, give it a topmost priority. जो भी टॉपिक्स इस सिलेबस के अंदर है उस टॉपिक को थोड़ा पहला प्रायोरिटी दो और उसको थोड़ा अच्छे से मतलब कवर करो. उसके बाद जो भी बचा हुआ होगा उसको कवर करना. मैं इस पूरा सिलेबस को थोड़ा ब्रेक करके बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए. आपको तो ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो दैट दिस कंटेन्स 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एंड सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. राइट, तो इसमें जो ICAR का सिलेबस है, द ICAR सिलेबस, दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट यूनिट्स, द यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड द यूनिट 4. So these are the simple 4 different units that you have to cover under the subject of plant sciences. Okay, तो इफ़ यू जस्ट लुक एट फॉर द फर्स्ट यूनिट, द यूनिट 1, तो इसमें क्या है, यूनिट 1 में जो आप लोगों को सब्जेक्ट्स मिलेंगे एग्रीकल्चर में वो है कि मेनली इट इज़ एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस. लेकिन ऐसा तो आपको पता भी नहीं होगा कि प्लांट साइंस में एग्रोनॉमी सॉइल साइंस पढ़ना चाहिए. यस, पढ़ना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा वेटेज दे के पढ़ना चाहिए. लेकिन उसके लिए आप पूरा उसका डेडिकेटेड बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. लाइक यू नीड नॉट टू गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ दिस एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस. जस्ट यू हैव टू कवर द एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम द जनरल एग्रीकल्चर बुक. कोई भी जनरल एग्रीकल्चर बुक ले लो आप, वहाँ से आप अगर सॉइल साइंस एंड एग्रोनॉमी को अच्छे से कवर करोगे, देन दैट इज सॉर्टेड, दैट्स डन. ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल इकोनॉमी, द बेसिक प्रिंसिपल्स, यहाँ पे थोड़ा इकोनॉमिक्स भी आएगा जहाँ पे आपको थोड़ा एलिमेंटल नॉलेज होना चाहिए. और ये कहाँ से मिलेगा, अगर आप इसको जनरल एग्रीकल्चर बुक से पढ़ोगे, लाइक इफ़ यू रीड इट फ्रॉम जनरल एग्रीकल्चर बुक और फ्रॉम योर क्लास नोट्स, सो दैट वुड बी सफिशिएंट. बट डू नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दिस यूनिट 1. So it would be on the regular basis that you cover it from only general agriculture book. That is more than sufficient. Okay, this is all about the unit 1. Second from the second units, our core subject will start. So it is the first. You can see this is the structure and function of cell organelles. This is all related to cell ultrastructure. जो भी यहाँ पे टॉपिक्स आएंगे related to the genetics, like first one, the second meiosis and mitosis, and the Mendelian genetics. See, they have only given the Mendelian genetics here. The Mendelian genetics can include anything and everything. There are a lot of things in the Mendelian genetics. So the chances are that they can ask anything from the Mendelian genetics. Although they have not made very clear that what they are going to ask, but they have included this Mendelian genetics in your syllabus. That means you have to be very thorough with all the concepts of the Mendelian genetics for if you are preparing for this exam. तो यहाँ पे Mendelian genetics हो गया. नेक्स्ट यू हैव टू हैव दिस बिकम्स द जेनेटिक्स जो मैं बोल रहा हूँ. तो फर्स्ट द सेकेंड यूनिट में फर्स्ट पार्ट होगा जेनेटिक्स. जेनेटिक्स का साथ कौन से और चैप्टर्स है यहाँ पे, एलिमेंट्री नॉलेज ऑन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. तो इफ यू आर कवरिंग यूनिट 2, इट adds genetics plus the plant physiology, as you can see, plus biochemistry. Biochemistry starts from where? It is the functions of the carbohydrates, protein, nucleic acids, enzymes, vitamins. These are nothing but the biomolecules. Those things should be covered from the biochemistry. And next,
it also covers the entomology, the pest and the diseases of the microorganisms, the pest and diseases caused by the microorganisms in the several different crops. यहाँ पे भी like you can see that there are some major crops that they have mentioned. So what does it mean? So you have to be thorough with each and everything in these major crops. That doesn't mean that you should not read the minor other crops which are not mentioned here. You also have to cover it, but give some weight, extra weightage to these क्रॉप्स विच आर मैंशनड ईयर. जो भी टॉप यहाँ पे क्रॉप्स मैंशनड है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वेटेज देना और इसको अच्छे तरीके से कवर करना. तो यूनिट 2 कवर्स जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी. ओके, नेक्स्ट यूनिट 3. द यूनिट 3 में क्या क्या कवर होगा? Unit 3 will covers the prokaryotes and eukaryotic characteristics, the difference between the fungi, bacteria, mycoplasma and viruses, the physical chemical basis of heredity, chromosome structure, and it also includes the breeding aspects like heterosis and the elemental knowledge of economic botany and IDM, integrated disease management, and few parts of microbiology which are sterilization, disinfection, pasteurization, course postulates, all these things. So that means this unit 3 will include, firstly it will include again genetics भी included है इसमें. Also it also includes the plant pathology, plus it includes the plant breeding, plus it also includes the agriculture microbiology, as you can clearly see from the unit. Still unit 3 continues where the smuts, powdery mildew, wilts, yellow mosaics, necrosis, annations, blights, witches. सी जितने भी यहाँ पे डिसीज आपको मेंशन दिए हुए दिख रहे हैं, लाइक दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. So you have to make a plan such that you will be giving lot of weightage on these diseases, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे डिसीज होंगे, बहुत सारे कॉजल एजेंट्स होंगे, बहुत सारे क्रॉप्स होंगे पढ़ने के लिए, लेकिन कौन सा किसको प्रायोरिटाइज करोगे? लाइक यू हैव टू बी इन दैट अप्रोच वेर यू प्रायोरिटाइज द थिंग्स. लाइक एक जो इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा ज़्यादा रिवाइज करना होगा, जो इंपॉर्टेंट कम लगते हैं उसको थोड़ा कम रिवाइज करना होगा. कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है? बाय सीइंग द सिलेबस एंड ऑल्सो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. आप एक बार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करोगे, लाइक इफ यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स वेरी नाइसली, एटलीस्ट 4 to 5 times all the previous year papers which are available, like in our website we have the papers starting from 2020 till 2024. All the papers are available for free for everyone. You have to just visit our website www.agreedict.in. There under PYQPS sections you will find the papers of the plant science under the ICRPG exam. Just download it. You will also get the key answers at the end of every PDF, so you can download it and make a good use of it. उसको देख के आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं बता रहा हूँ कि स्मट्स, powdery mildew, downy mildew, wilts, yellow mosaic virus, like necrosis, annations, blights, ये सारे जो है जो मेन है डिसीजेस में, तो इनको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए और इसको प्रॉपरली रिवाइज करते रहना चाहिए. यू हैव टू रीड इट वेरी थरोली एंड मेक अ गुड रिविजन ऑफ ऑल दिस थिंग्स. नेक्स्ट इसके बाद आता है रोल ऑफ प्लांट हार्मोन्स. दिस स्टार्ट्स द सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. लाइक इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व द सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है. लाइक देयर आर वेरी मिनिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स अंडर सीड साइंस. So what does it mean? That means you should not invest your time on the seed science much. Like अगर आप लोग सीड साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक यू हार्डली हैव टू स्पेंड 1 month ऑफ टाइम, नॉट मोर देन दैट. 1 month भी थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ. अगर आपके पास 6 months ऑफ टाइम है, then consider only investing 1 month or less. Do not invest more on that for the first reading. For revision, you can spend the time, but for the one reading, just limit your sources for the seed science and technology, because यहाँ पे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है और क्वेश्चंस भी मतलब लगभग 10 के अंदर ही क्वेश्चंस आएंगे. 120 में लगभग 10 के अंदर ही होंगे जो सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा जाएगा. So the question will be always below 10 only in the ICRPG exam. So that is how much weightage you have to give for the seed science. यहाँ पे like आप देखोगे, like it is plant hormones in seed germination, the dormancy, the pollination, the fertilization in flowering plants, and the methods of seed testing. So if you ask me like how to cover seed science and technology, so I would definitely say that I have made a dedicated playlist of 17 videos in the YouTube, which are freely available on the YouTube under a separate playlist. So the playlist link will be available in the description box. So if you just go through the 16 videos and get the notes of it, that is sorted for you. You need not to read it from any of the book. That I can bet you. Okay.
So this is how much simple it would be if you watch this video lectures. So you will get to know it after watching the video lectures. Okay, if you are watching this video, go back and watch the playlist of Seed Science and Technology. Once you finish that video, you can comment on this video that you have completed, and also you can share your experience, like how did you feel covering the seed science from my videos. I will be very happy to listen to your feedback. Okay, next, so this is all about the seed science and technology. Next इसके साथ, like you also get the nitrate assimilation, the biological nitrogen fixation, and all other uses of the microorganisms in agriculture. So this part is from the AMB, agriculture microbiology. So agriculture microbiology, if you are considering it, then AMB में most importantly it's the nitrogen fixation that you have to be very thorough with. The nitrogen fixation में कुछ भी questions आ सकते हैं, like regularly, like every year the questions will be asked from this topic. So be thorough with the nitrogen fixation, and also with the use case, that is industrial microbiology, the food microbiology. So these are some of the key areas which you should be very thorough with, and also about the microscopes and the characteristics of the microorganisms like bacteria, virus, fungi and other microorganisms. अगर आप बेसिक सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो क्लासिफिकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उसके बारे में आप अच्छे तरीके से नॉलेज रखोगे, उसको अच्छे से कवर करोगे, रिवाइज करोगे, लेकिन इफ यू डू इट ऑल दिस थिंग्स, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर द AMB टू बी कवर्ड. ओके, सो दिस इज फ्रॉम द यूनिट 3. तो लास्ट यूनिट 4 में क्या है, लाइक यूनिट 4 मोस्टली रिलाइज ऑन द माइक्रोबायोलॉजी विच इज फूड एंड इंडस्ट्री and composting biogas, the important roles in the rural development programs in India, the organization setup of agriculture research, education and extension in India. जो ये वाला last part है, this last part, it is purely from general agriculture, where you have to cover the current affairs section. करंट अफेयर्स जो चल रहे होंगे मेनली ऑन स्पेसिफिकली ऑन द एग्रीकल्चर फील्ड, यू हैव टू ट्रैक द करंट अफेयर्स, लाइक व्हाट आर द न्यू वेराइटीज विच आर रिलीज्ड, व्हाट आर द न्यू स्कीम्स दैट आर brought by the government which are working in India, and you have to know about all the ICR institutes in the India, that is important, its location and the abbreviation क्या full form है, what is the expansion, all these things are important along with the location, कहाँ वो locate करते हैं, like where they are situated, all the different ICR universities, ICR institutes, so and also the international institutes for agriculture. जो भी agricultural के related जितने भी institutes होंगे लगभग सबको cover करना और सबको time to time revise करना, ताकि जो भी questions यहाँ से आएंगे like you will be able to answer. So this is how you can simplify the 4 units that you need to prepare for the ICAR PG Plant Science exam. Okay, the syllabus is sorted now. अगर next question जो आएगा अभी, सर ये 4 यूनिट कवर करने के लिए बुक्स कौन कौन से रेफर करना चाहिए, राइट, दिस वुड बी द ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आप लोग इंटरनेट पे देखोगे या यूट्यूब में देखोगे, बहुत सारे टॉपर्स होंगे जिन्होंने वीडियो बना के अपलोड किया है. हमने भी मतलब बहुत सारे टॉपर्स का हमने इंटरव्यू किया है और उनसे पूछा है कि कौन कौन से बुक्स उन्होंने रेफ़र किया था. ऑलमोस्ट लगभग जितने भी स्टूडेंट्स टॉपर्स है इस एग्ज़ाम के पिछले साल का, सबका एक कॉमन पैटर्न है जो बुक्स उन्होंने रेफ़र किया है. वो जो कॉमन बुक्स है वो मैं बताता हूँ. उसके अलावा भी स्टूडेंट्स ने बताया होगा, लाइक द स्टूडेंट्स हैव मेंशन्ड लाइक फ्यू अदर स्पेसिफिक बुक्स दैट दे ओनली हैव रेफर्ड. ओके, दोज थिंग्स इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू ऑल्सो फॉलो द सेम. ऐसा नहीं है कि जो टॉपर पूरा फॉलो किया होगा उसी को आप फॉलो करेंगे तभी आप टॉपर आएंगे, ऐसा नहीं है. लाइक इट्स नॉट लाइक दैट. द कॉमन बुक्स दैट every topper has shared in their video which they have mentioned, that is common for everyone. Other than that, if you have any specific source that is there with you, you can use it. You need not to search for the sources or the references which the toppers have quoted in the YouTube channel. like जो भी YouTube वीडियोस होगा, जो भी आप लोग देखोगे, उसमें आपको बहुत सारे बुक्स मिलेंगे. ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग बुक्स के बारे में बताएंगे कि सर ये बुक अच्छा है, ये बुक अच्छा है, ये मैंने पढ़ा था, इससे ज़्यादा मुझे हेल्प हुआ. लेकिन ये सब सुनने के बाद you have to not increase the number of books that you will be going to study for the exams. You have to in turn decrease the number of books or limit the number of resources that you will be using to crack these exams. So that's the trick here. You have to do it. Only when you limit your sources, only then you will be able to read each and everything in detail and understand them properly and revise from time to time. If you are just increasing the resources you are trying to prepare for this exam from the past 2 years, 1 year, it would be miserable or it will be very difficult for you to cover everything and remember it. So instead of that,
make a proper analysis of the previous year papers, go to the exam syllabus, watch the different toppers guide videos. We have made a toppers guide videos are more than 20 plus over the past 2 to 3 years. So you can just check the playlist link in the description box and go and check those videos, and whichever is suitable for you, whichever is relevant for you, you think you can use those sources. But still, I would be recommending very minimal number of books that you have to refer. These are the mandatory books. Other than that, it's optional, up to you, like whether you want to read those books or not. But the books that I'm going to mention here, that are mandatory, and I'll be mentioning very limited number of books in this video. I won't be mentioning all the books for all the subjects. Okay, let's start with the genetics. ऐसा आपको पता है, इट ऑल स्टार्ट विद द जेनेटिक्स. जो भी मतलब स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, दे विल ऑब्वियसली स्टार्ट विद द जेनेटिक्स, बिकॉज ऐसा फ्लो ही ऐसा है कि अगर आपको जेनेटिक्स अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग समझ में आएगा, और थोड़ा कुछ इसमें प्लांट पैथोलॉजी में रिलेवेंस है वो समझ में आ जाएगा, उसके बाद एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी. देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स which will be already covered in the genetics and the plant pathology, so that you can skip in the microbiology. So the order which will work for most of students is the genetics first, the plant breeding, and the plant pathology, microbiology, and lastly you can take the seeds and technology. उसके बाद आपको अगर टाइम मिल रहा है sufficient, then you can go for the other books, other subjects like the plant physiology, biochemistry, and the biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी का कुछ टॉपिक में या सिलेबस में कुछ डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी विच इज ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग विद द जेनेटिक्स टॉपिक्स. ओके, पता नहीं चलेगा क्लियरली कि ये जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है या बायोटेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट है या प्लांट ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट है. दे आर समवॉट ओवरलैप्ड, सो एलिमेंटल नॉलेज ऑफ द बायोकेमिस्ट्रीज बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नेसेसरी, दैट आई वुड से. उसके बाद जब आप लोग ये सब कवर करेंगे, देन गो फॉर जनरल एग्रीकल्चर. लेकिन आई वुड रेकमेंड, अगर आप डे 1 से जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हो, मेक श्योर दैट एवरी डे यू एटलीस्ट स्पेंड 1 hour टू रीड द जनरल एग्रीकल्चर बुक. एनी बुक you can refer, and most commonly like students will refer the Nemra Sunda, and I also referred the Nemra Sunda when I was preparing, so that was beneficial for me. But along with the Nemra Sunda, I also went for the Arun Katan, since my basics was not that strong at that time. But if you feel that your basics is already strong, you know many things, you just have to revise, then you can go for this single book. That would be sufficient. But try to read it every day or every alternate day or every week, so that you can revise it properly. Because जनरल एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा समझने से ज़्यादा है कि उसको आपको याद करना होगा. तो याद करने के लिए अगर आप रोज़ रिवाइज करोगे तो बेटर है. अदरवाइज दिस इज द फ्लो दैट यू कैन फॉलो टू कवर द प्लांट साइंस सिलेबस. यही है जो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स ने फॉलो किया है, ओके, अब तक. And also, like, if some toppers has followed some strategy, that doesn't mean that you also should follow the same. It depends on your understanding of the subject and based on your condition that how you will do it. आपको तो पिछले काफ़ी एग्जाम आपने लिखा होगा, आपने खुद के स्ट्रेटजीज बनाए होंगे. अगर वो वर्क किया है in the past, it will also work in the future. You have to stick with your strategy and be confident about what you are doing. That's it. Do not compare it with anyone else, like वो ज़्यादा पढ़ रहा है, वो कम पढ़ रहा है, वो खुद का नोट्स बना रहा है, कोई नोट्स नहीं बना के पढ़ रहा है. That doesn't matter. आपको अच्छा लग रहा है कि नोट्स बना के ही पढ़ूँ तो नोट्स बना के पढ़िए. अगर आपको लग रहा है कि बिना नोट्स के भी अच्छे से पढ़ सकते हैं तो उसके बिना ही पढ़िए. So that depends on you. Like, if you are willing to write or willing to learn with the notes, by writing the notes, go for it. Otherwise, if you feel like you are very comfortable just by reading, not by writing, you can also follow it. That entirely depends on the individual. You need not to compare it with anyone. Okay, starting with the genetics. Genetics में क्या क्या books refer करने होंगे? अगर you talk about genetics and plant breeding, I will recommend only one book for the genetics. It is Genetics by B.D. Singh. उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है कि उसमें जेनेटिक्स बाय B.D. सिंह पे जाना है या फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स पे जाना है. अगर आपको भी एक कन्फ्यूजन है, यू कैन टेक एनी ऑफ द बुक्स, बट आपको ऑलरेडी थोड़ा एलिमेंटल नॉलेज है जेनेटिक्स के बारे में, आपको अच्छा ग्रिप है, देन यू कैन गो फॉर जेनेटिक्स बाय B.D. सिंह, जिसमें थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कुछ कंटेंट है कंपेयर टू द फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स. बट अगर आपका बेसिक सा है कंडीशन, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो जेनेटिक्स टॉपिक्स को पढ़ना है अच्छे तरीके से फ्रॉम द स्क्रैच, देन जस्ट फॉलो द फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स. जितना उसमें दिया है उसको पढ़ लेना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. लेकिन द पॉइंट कम्स लाइक हाउ मच एंड व्हाट चैप्टर्स टू बी कवर्ड फ्रॉम द जेनेटिक्स फ्रॉम द B.D. सिंह. सो इसके लिए मैं अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हर एक टॉपिक का बताऊंगा कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, what to read and what not to read. That will be in another dedicated
वीडियो। अगर आपको वो वीडियो चाहिए देन कमेंट ऑन द वीडियो दैट आई नीड जेनेटिक्स वीडियो। आप लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपको जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है उसको अच्छे से ब्रेक करके बताना है, आपको चाहिए वो वीडियो, देन कमेंट ऑन दिस वीडियो दैट आई वांट जेनेटिक्स वीडियो। ओके, बिकॉज इसमें बहुत सारा मेहनत भी लगता है कि आई हैव टू सिट एंड write each and every topic and break it to make you understand that what you have to read from the each and every unit. So that will take a lot of time and efforts, and if you appreciate the time and efforts that we are making, then please comment on this video that you need it, and we'll definitely come up with those videos in the upcoming days. Okay, so first thing, the genetics, the only book genetics अगर पढ़ रहे हो, like the BD Singh is enough, you not to go for any other books. उसके बाद एक बार आपने अच्छे से जेनेटिक्स पढ़ लिया, लाइक यू हैव रेड द जेनेटिक्स थरोली, देन गो फॉर जेनेटिक्स मेड इजी. सो दैट इज ऑल्सो वन गुड बुक फॉर द रिविजन, बट आई वुड वार्न यू दैट डू नॉट रीड एवरीथिंग फ्रॉम जेनेटिक्स मेड इजी, बिकॉज जेनेटिक्स मेड इजी में ऐसा भी कंटेंट है जो पीएचडी के लिए इंपॉर्टेंट है, पीजी के लिए नहीं है. तो ट्राई टू स्किप विच आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, विच आर ओनली रिलेवेंट फॉर यू. जो भी आपने पढ़ा है बीडी सिंह से जिसमें आपको लग रहा है कि रिलेवेंस है, उनको ही मतलब रिवाइज करना, बाकी तो स्किप कर देना उसमें जेनेटिक्स मेड इजी से. तो आपको तो देख के पता चल जाएगा. इफ़ यू आर seriously analyzing the previous year papers, then you will get all these things, but the book remains the same, it is just the BD Singh. Next, the plant breeding. अगर plant breeding का आप बात करेंगे, there are again two different books, one is by Pundan Singh and one is by BD Singh. तो इसके लिए भी मैं सेम बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ब्रीडिंग में ऑलरेडी एलिमेंटल नॉलेज है, आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लगता है प्लांट ब्रीडिंग और इंटरेस्टिंग लगता है, देन यू कैन गो फॉर बीडी सिंह. एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम, अगर आपके पास मोर देन 6 मंथ्स है, अगर 6 मंथ्स होगा और आप कॉन्फिडेंट हो कि आप जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे, तो बीडी सिंह कर लेना. अगर आपको लगता है कि आपका लेवल अभी थोड़ा बेसिक में ही है, लाइक यू आर जस्ट स्टार्टिंग, देन जस्ट रीड द पुंदन सिंह एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉक टेस्ट. दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर द प्लांट ब्रीडिंग. So that's all what I would like to say. This is the two books which I mentioned. So one is from Pundan Singh and one is from BD Singh. So out of this, it's up to you, based on the condition, you analyze which book you have to refer. Next, it's about the another major subject, which is plant pathology. Agar same, like if you are very much interested and keen about the pathology subject, then start with GN Agrios. That will also give you a very good understanding about the plant pathology. And other than this, you have to mandatorily refer the HC Dubey. HC Dubey is must, irrespective of whether you are interested or not. HC Dubey तो must है, आपको ये कंपलसरी कवर करना ही होगा. From this, what you will going to learn, you will be going to learn all about the introduction to pathogens. Pathogens जो भी है उसका क्लियर कट क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना होगा, जो मिलेगा HC Dubey पे. ठीक है. और इसके अलावा अगर आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर GN Agrios. इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स है. अगर आपको पूरा बुक्स चाहिए, नो मैटर लाइक आपके पास टाइम ज़्यादा हो, आपको इंटरेस्ट हो, तो इसका ऑलरेडी एक वीडियो हमने बना के रखा है कि बुक्स फॉर ICAR PG एग्जाम. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यू कैन वॉच दोज एंड यू कैन रीड ऑल ऑफ दोज बुक्स. बट अगर डेडिकेटेडली एग्जाम के लिए आप बात कर रहे हो, दिस आर इनफ. एंड देर इज़ वन ऑब्जेक्टिव बुक कॉल्ड एज Plant Pathology at a Glance. I personally do not recommend going for this book, because इसमें ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपने कहीं देखा ही नहीं होगा. ओके, दे आर ओनली इन दिस ऑब्जेक्टिव्स. हम क्या करते थे, लाइक मे बी लाइक इवन मी, लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई ऑल्सो गॉन थ्रू दिस बुक. मोस्ट ऑफ द टाइम आई मग्ड अप. I was not knowing the answer when I was to solve these objective books, and I used to mug it up, but ultimately it was of no use, because जो भी आप लोग HC Dubey में पढ़ोगे, अपने क्लास नोट्स में पढ़ोगे या GN Agrios में पढ़ोगे, वो मिलेगा नहीं इसमें. तो उसमें थोड़ा मिस्टेक्स भी होंगे, मिस्टेक्स भी है इसमें थोड़ा. तो उसमें थोड़ा काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मतलब टेंशन में आ जाएगा अगर इस बुक को सॉल्व कर रहा है. तो अगर आपको सफिशिएंट नॉलेज है, आपको अच्छा लग रहा है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, देन यू कैन गो फॉर इट. इट्स योर विश, इट्स कंप्लीटली वॉलंटरी. What I'm trying to say is, even if you skip this book, that will not be any loss for you. That's it. So this is all about the plant pathology. इसके अलावा हमने तो introduction of plant pathogens पढ़ा और Agrios का plant pathology पढ़ा. Then what about diseases of the agriculture and the horticulture crops? तो ये इसको कहाँ से कवर करना है? So this is the next question. तो डिसीजेस के लिए अप्रोच पूरा सिंपल रखना है कि आपको हर एक क्रॉप में हर एक डिसीजेस का कॉजल एजेंट, उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम, इटियोलॉजी एंड एपिडेमोलॉजी, द मैनेजमेंट, इस सारे टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करके अच्छे से टेबल बना के उसको थरोली रिवाइज करना चाहिए. और इसमें जो भी पैथोजेंस आएंगे उसके बारे में आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस में आइडिया होना चाहिए कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका सेक्सुअल स्पोर होगा या एसेक्सुअल स्पोर होगा, वो कैसे प्रोपोगेट करेगा और इसका कंट्रोल मेजर्स क्या होगा.
like what will be the etiology, epidemiology, the control management, ये सब you have to know it, and that knowledge will come from the introduction to pathogens. Like if you are very thorough with the introduction to pathogens, then whenever you might try to make a table of diseases of agriculture and horticulture crops, then you can recall all of these things, and mostly the things are just to mug up in the diseases, so you have to compulsorily make the table so that you can revise it from time to time. We from our AgriEdit platform will be giving a crisp notes that was already given in the previous years. crisp notes पे हमने एक पूरा टेबल बनाया है जिसमें हमने ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डिसीज वी हैव इंक्लूडेड, बहुत अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन करके हमने बनाया है, जो PDF फॉर्म में अवेलेबल रहेगा अगर आप लोग कोई भी प्लांट साइंस वाला कोर्स को ले रहे होंगे. अगर प्लांट पैथोलॉजी ले रहे हो या मास्टर कोर्स ले रहे हो तो आपको इस वाले PDFs मिल जाएंगे एक्सेस, जहाँ से आपका प्रिपरेशन बहुत ईजी होगा. अगर आप लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो काफ़ी कुछ डिफरेंस नहीं होगा, आपको सिर्फ अपने खुद से लिस्ट बनाना होगा. अगर लिस्ट बना लिया एक बार तो खत्म, आप लोग को सिर्फ उसको रिवाइज करना होगा. वंस यू मेक योर ओन लिस्ट देन यू हैव टू जस्ट रिवाइज द थिंग्स फ्रॉम द नोट्स दैट यू हैव मेड, सो दैट कवर्स द कंप्लीट प्लांट पैथोलॉजी. इसके अलावा लाइक वन मोर सोर्स आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इज गो फॉर द एंग्रो नोट्स. एंग्रो का जो मटेरियल है प्लांट पैथोलॉजी के लिए इट्स वेरी गुड, सो यू कैन गो फॉर इट. एंड अलॉन्ग विद इट इफ यू हैव एनी क्लास नोट्स, university notes, the manuals that you feel that very good and relevant information is given about the pathology, then you can read those also. That will also help you in your exam. So this is all about plant pathology. Next, the introduction to microbiology. Microbiology के लिए क्या करना होगा? Microbiology के लिए there is only one book which is Taro and Kapoor, and in this book you need not to refer all the chapters. The first 5 and the last 6, these are enough. First 5 and the last 6 chapters, if you are reading from this book, it is sufficient. Okay, other than this also try to go for the Angro material and try to cover the things. If you are going for these two, that would be sufficient for other agriculture microbiology, and if you can cover from any of the general agriculture books, that would be enough. That's it for AMB. Next, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. लाइक सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैं वही बोलूँगा कि अगर आपके पास टाइम है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपके पास सफिशिएंट टाइम है और उस आपको रिवीजन के लिए भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट आपने सब कुछ कवर किया हो, लाइक इफ़ यू हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, देन यू विल बी हैविंग सफिशिएंट टाइम. If you have sufficient time, the only 2 standard books that you have to go for is R.L. Agarwal and P.K. Agarwal. And this R.L. Agarwal also do not read completely. It is for the SRF mainly. अगर आप लोग PhD एंट्रेंस लिख रहे होंगे तभी ये पूरा आपको फायदे में आएगा. अगर आप MSc के लिए पढ़ रहे हो, like you need not to read everything. Do not read everything from the R.L. Agarwal book. Keep your sources limited in that. Keep the topics limited which you are going to cover. इसमें आपको क्या मेनली कवर करना होगा, like you have to just cover the seed testing and the seed legislation part. If you are able to cover these two, that would be sufficient. Plus, if you can also cover the seed processing up to some extent, that would definitely benefit you for your exam from the R.L. Agarwal. P.K. Agarwal, it is very small. You can go through every single chapter from the P.K. Agarwal, but only try to remember those things which you feel that are relevant and important for you. And the only 2 books that I would recommend is the R.L. Agarwal and the P.K. Agarwal. Other than this, if you still want some simplified version of these books, then just go and watch the 16+1 videos that I have uploaded in the YouTube under the playlist of Seed Science and Technology. So that will serve the purpose. Everything will be clear from the seed science. So that's it about all the major subjects. Now comes the topic of minor subjects. माइनर सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना होगा, जैसे कि माइनर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, लाइक बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. अगर आप कंसिडर करोगे देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर द स्टैट्स. ऐसे तो जनरल एग्रीकल्चर में कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी लाइक इफ़ यू कंसिडर द स्टैट्स एंड गेट गुड and sufficient knowledge, the basic elemental knowledge of statistics, that will definitely help you in your exam. तो बायोकेमिस्ट्री के लिए, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए अगर आपके पास टाइम है and if you are very much interested in the science based topics, then you can read this Pathfinder 1 and 2. This is life science books which we actually came to know after coming into MSc, but these are very good books and you need not to read each and everything, but whatever is relevant for you, you can pick from these books and read it.
कंप्लीट बुक इज़ नॉट नेसेसरी, इसमें तो बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स है। इसमें एक यूनिट बायोकेमिस्ट्री भी है और एक प्लांट फिजियोलॉजी भी है और जेनेटिक्स भी है। अगर वो आपको अच्छा लग रहा है, वो पढ़ना मतलब इसमें कवर करने के लिए अच्छा लग रहा है, देन यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज इफ यू जस्ट वांट कवर दिस फ्रॉम एनी ऑफ द अवेलेबल सोर्सेस, देन यू कैन गो फॉर योर क्लास नोट्स एंड द एंग्रू नोट्स और एनी अदर लोकल मटेरियल विच आर अवेलेबल, क्योंकि ये क्लास 11th एंड 12th से भी सेम होगा। तो एनी बेसिक मटेरियल जो भी अवेलेबल रहेगा वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स पे जाने का ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। इफ यू आर कवरिंग फ्रॉम द एंग्लो नोट्स, क्लास नोट्स और एनी अदर मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल लोकली, यू कैन कवर इट फ्रॉम देयर। एंड इफ यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस subjects, then you can consider the life science book of Pathfinder 1 and 2. This will help you. And statistics के लिए क्या करना होगा? Statistics, go for your class notes, और इसमें आप क्लास नोट्स पे जाके अपना जो एलिमेंटल नॉलेज है उसको थोड़ा रिफ्रेश करिए, दैट वुड बी सफिशिएंट। ओनली जस्ट ट्राई टू रिवाइज दैट व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द BSc एग्रीकल्चर, that would be sufficient for statistics. Still, like for statistics, we'll make a dedicated video that will be available across all the subjects. जितने भी ICRPG के सब्जेक्ट्स है सबके लिए स्टैट्स इंपॉर्टेंट है। So we will make a free dedicated video on this video lectures from one of our mentor that will be uploaded directly in the YouTube in the coming days, that you can refer directly if you are shortage of time. तो वहाँ से आप डायरेक्टली इसको कवर कर सकते हो। बाकी ऐसा प्लांट फिजियोलॉजी में बताया मैंने, दिस इज मोस्टली इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? रेस्पिरेशन, photosynthesis, these two, and the transpiration. So these three things are very very important from plant physiology. And the nitrogen fixation you can also consider here or in the microbiology, anywhere. So if, but the topic is important no matter like in which you cover the nitrogen fixation. So these things should be covered. और इसको कहाँ किस बुक से रेफर करना होगा और किस से कवर करना, यू कैन रेफर एनी ऑफ द बुक्स विच यू आर कंफर्टेबल इन, बट दिस टॉपिक्स शुड बी क्लियर टू यू for the ICRPG exams. You can definitely expect some questions from these particular chapters. These are compulsory that you have to go for. And Biotech Lunch में थोड़ा बहुत एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में थोड़ा अच्छे से देख लेना, एलिमेंटल नॉलेज रखना, और जो भी जीन एडिटिंग टूल्स है उसको अच्छे से देख लेना। दैट विल बी सर्विंग द पर्पज ऑफ रीडिंग दिस बायोटेक्नोलॉजी। ओके, उसके अलावा जो ब्रीडिंग मैंने बताया कि यू गो फॉर आइदर एसेंशियल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग और द प्लांट ब्रीडिंग बाय BDC। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पे, द प्लांट ब्रीडिंग टॉपिक्स विच यू विल बी लर्निंग आर मोस्टली द वन दैट यू विल बी लर्निंग आफ्टर कमिंग टू MSc। तो पेपर सेटर लाइक आपका ओनली एलिमेंटल नॉलेज चेक करेंगे प्लांट ब्रीडिंग में। द पेपर सेटर इज ओनली विल बी ओनली इवेल्युएटिंग योर एलिमेंटल नॉलेज ऑन द प्लांट ब्रीडिंग। तो जितना आप लोग जेनेटिक्स पे टाइम दे रहे हो उतना टाइम प्लांट ब्रीडिंग में देने का ज़रूरत है नहीं है। आपको इसमें यकीन नहीं आ रहा है तो यू गो एंड वॉच and you and download the previous year question papers and just count the number of questions that are being asked from the plant breeding, and also check what is the level of the questions. Are they very simple? Are they complicated? You will get to know this. So my idea or my understanding about this is the breeding is mainly dealt in the MSc in detail. तो MSc एंट्रेंस के लिए आप अगर जा रहे हो, लाइक यू हैव टू कीप योर नॉलेज टू एलिमेंटल लेवल, दैट वुड बी सफिशिएंट। तो दोनों बुक में कोई भी बुक आप रेफर कर रहे हो, सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट रीड एवरी लाइन, एवरी टॉपिक. You try to skip which are not relevant for you. We'll be also coming up with a dedicated video for plant breeding separately after the genetics, that what you have to cover from the plant breeding. That again, that needs a comment from you, that if you need the plant breeding video, just comment I need plant breeding video. Okay, we'll come plan for it and we'll come with within this exam of 2025 का जो भी एग्जाम होगा, within that we'll try to upload it so that it should be useful for the current batch also. And obviously, like if you are preparing for 2026, 2027 or any upcoming years, this will be definitely helpful for you. ये हो गया, all minor subjects are done. This is the genetics made easy which I mentioned. If you have sufficient time, go for the revision करने के लिए एक बहुत अच्छा बुक है. And next, the last one, which I was supposed to say is like general agriculture. I referred general agriculture from Arun Katayan and Nemra Sunda. If you are also willing to do it from any of these two books. As I told you, like if ये भी questions है students का कि अगर अरुण कातायन को भी पढ़ना होगा या नेमरा सुंदर को भी पढ़ना है, दोनों को पढ़ना होगा या किसी एक को पढ़ना होगा. अगर आपको ऑलरेडी थोड़ा बेस लेवल पे अच्छा नॉलेज है, आपने BSc एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छे से अपने क्लासेस दिए होंगे और एग्जाम को दिए होंगे, तो लाइक स्टडिंग नेमरा सुंदा अलोन इज सफिशिएंट. ओके, बट
अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर नहीं है, आपने ज़्यादा कुछ गैप्स है अपने अंडरस्टैंडिंग पे, देन गो फॉर द अरुण कातैन, बट ऑल्सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लाइक हाउ मच टाइम you have. See, you might have seen the students in our YouTube channel who have cleared the exams just by preparing for 2 months, 3 months, 4 months, 6 months, 1 year, 2 year. There are different categories of the students. But for everyone, the one common thing is the confidence. If you are confident that you can do it, you will be able to do it no matter like how less the time is. बट मिनिमम लाइक 2 to 3 months टाइम चाहिए होगा ताकि आप अच्छे से कवर करो. अगर आपको ऑलरेडी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पता है, लाइक आपका BSc एग्रीकल्चर में आपने बहुत मेहनत करके सारे सेम एग्जाम्स को निकाले हैं, आप सब में टॉप कर रहे हो, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर ले कि फिर अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी क्लियर, देन इवन 1 month, 1.5 month इज सफिशिएंट टू crack this exam. That all depends on like how much residual knowledge that you have. And one more important book, एक like आपका ज़रूर एक क्वेश्चन होगा कि मैंने करंट अफेयर्स के बारे में बात किया था, लाइक वेयर टू कवर द करंट अफेयर्स. एग्रीकल्चर का जो करंट अफेयर्स है कहाँ से कवर करना. तो एवरी ईयर देर विल बी अ पब्लिकेशन, विशाल पब्लिकेशन विच विल रिलीज द एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एवरी ईयर. तो जस्ट ट्राई टू डाउनलोड और गेट दिस बुक फ्रॉम द फ्लिपकार्ट और अमेजॉन from the latest year and try to just note down the varieties भी मतलब थोड़ा मेजर varieties का नेम्स याद रख लेना, और उसके बाद द स्कीम्स, जो भी स्कीम्स आए होंगे उसको थोड़ा देख लेना, और इंस्टीट्यूट्स जो भी मैंने बताया उसको आप अच्छे से रिवाइज करना. ये सारे चीज़ बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स में, जिसको आप इस बुक से कवर कर सकते हो. इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी सोर्सेस हो जिसमें एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में दिया हो, उसमें आप टारगेट करके जो रिलेवेंट है उस चीज़ को आप पढ़ लेना, बाकी को स्किप कर सकते हो. ओनली रीड द रिलेवेंट थिंग्स फ्रॉम द बुक्स, एनी ऑफ द करंट एग्रीकल्चर बुक्स दैट यू गेट, करंट अफेयर्स बुक्स दैट यू गेट फ्रॉम एनी सोर्सेस, एंड यू कवर द लिमिटेड थिंग्स इन दैट वुड बी हेल्पिंग यू. ओके, सो दिस इज everything and anything and everything about the प्लांट साइंसेस एग्जाम, अबाउट द सिलेबस. हमने एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया, सिलेबस के बारे में बात किया, बुक्स के बारे में बात किया. आई हैव लिटरली टच ईच एंड एवरी पार्ट इन इट इन डिटेल. अभी इसके बाद एज आई टोल्ड यू लाइक देयर विल बी डेडिकेटेड वीडियो फॉर वन फॉर जेनेटिक्स एंड वन फॉर प्लांट ब्रीडिंग. And if you need any other videos for any other subjects in detail, like if you people want me to break the subjects, the topics, and explain in detail, then you can comment on this video. We'll surely try to give the best content possible from our side. Next, who are we? Like as I told you, like we are the MSc and the PhD scholars from the India's premier institute, that is IRA, and also our mentors are in other top agriculture universities who are pursuing their MSc and PhD. तो these mentors who you are seeing on the screen, जो भी mentors आप लोग देख रहे हो, these are the mentors of plant sciences only. Okay, तो इसका स्पेशलिटी यही है कि हर एक सब्जेक्ट का जो मेंटर है वो स्पेशलाइजेशन किया हुआ है उसी सब्जेक्ट में. जैसे कि जो प्लांट पैथोलॉजी MSc या PhD किया हुआ है वो प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाएगा, और जो भी मतलब जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में कर रहे हैं वो जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग और सीड साइंस कवर करेंगे. और जो भी मैं सीड साइंस से हूँ लेकिन स्टिल आई एम कवरिंग द जेनेटिक्स and the plant breeding is covered by the MSc and the PhD scholars. सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज जो भी है उनसे आपको गाइडेंस मिलेगा और उनसे आपको क्लासेस मिलेगा, ताकि आपका जो फाउंडेशन है सब्जेक्ट का वो बेटर रहेगा. एंड प्रीवियस ईयर का बहुत सारा रिक्वेस्ट था स्टूडेंट्स के लिए, लाइक वी यूज टू ओनली प्रोवाइड द ऑनलाइन क्लासेस इन द इंग्लिश सिंस आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, बट seeing the request from the students, we have compiled a course where currently we are providing the classes both in the English and the Hindi. Hindi means not totally Hindi as you expect. I know like the students from the North India will expect the hybrid one, like English plus Hindi. So we have made the English and the sole English, the both are available in our course separately. ऐसा नहीं है कि both एक ही में mix किया हो, they are available separately. That if you enroll for our online master course, you can either go for the English classes or you can refer the Hindi classes, or if you still interested you can access both the classes of both English and English, both. So both the classes for all the topics will be available in our online master course for the plant sciences. So I'll just give you a quick detail about the online courses. So what is it exactly? See, our online courses currently we are dealing it in 6 different subjects, and in the coming days we also wish to include the biotechnology and the statistics, which is the missing one. Other than that, we have covered all the subjects of agriculture for the ICAR PG exams for the agriculture students.
Now we are currently dealing in the 6 different subjects of agriculture, starting with the, as I told you, like it is plant science, entomology, and it is agronomy, horticulture, social science, and the soil science. All these subjects are available. The master course for all these subjects are available, and our courses are exam to exam basis. That means we usually launch our courses in the month of June, July or August. See, this is the information for the upcoming batches. See, if you are preparing for 2028, 2029, 2030, or if you are preparing for 2027, any upcoming years, okay, then make sure to know that you will be getting our courses launched in the July or August, and it will be available till the exam day of that particular year. Our exam will be exam to exam basis, and we only run one batch per year. There are no multiple batches that we run per year. There will be only one batch for one subject. जैसे कि हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बैच होगा साल भर का, एंड द वैलिडिटी विल बी अप टू द डे ऑफ द एग्जाम. एंड हर एक सब्जेक्ट के लिए आपने दो अलग अलग टाइप के कोर्स निकाले हैं. One is called as master course, the online master course, which will cover anything and everything about the subject, like starting with the live plus recorded classes, the study materials, the mock test bundle, the previous year question paper discussions, the crisp notes, the doubt clearing sessions, the one-to-one mentorship. Everything is covered in the online master courses. And the mock test bundle, so we will be providing the 50 plus mock test, which includes the topic wise, the whole syllabus, the subject wise, general agriculture mock test, plus one-to-one mentorship, and the doubt clearing sessions will be held even for the mock test students also. So these are the two different types of the courses that we launch for the different subjects. जो भी different subjects है हमारा 6, उनके लिए सारे दो अलग अलग टाइप के कोर्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको एक मास्टर कोर्स मिलेगा, उसके अलावा आपको एक मॉक टेस्ट बंडल भी मिलेगा. एंड इफ यू आर टेकिंग द ऑनलाइन मास्टर कोर्स, यू नीड नॉट टू टेक द मॉक टेस्ट बंडल. देखो, अगर आप लोग मास्टर कोर्स ले रहे हो, उसके साथ ही होगा जो मॉक टेस्ट बंडल, उसके साथ ही मिल जाएगा एज अ कॉम्प्लीमेंटरी. यू नीड नॉट टू टेक द मॉक टेस्ट बंडल सेपरेटली. एंड द सिलेबस जो है, हर बार जब कोर्स लॉन्च होगा जुलाई एंड अगस्त में, हम स्टार्ट करेंगे यूजुअली सितंबर अक्टूबर में लाइव क्लास स्टार्ट होगा, और एवरी ईयर वी फिनिश द सिलेबस बाय मार्च, लाइक फेब और मार्च. एंड मार्च के बाद जो भी होगा, we'll try to give the revision series in terms of the video lectures, in terms of the quiz, the mock test, doubt clearing sessions, and one-to-one mentorship up to the day of the exam, so that all your doubts will be cleared and you will be very confident about writing this exam. And कितने classes होंगे weekly? When we start our live classes, so classes will be almost 4 to 5 classes per week, and we try to keep only one class per week, and it will be either in the early morning or the late evening after 6 p.m. Okay. And there will be weekly mock tests that will be starting after once the syllabus is covered, or in between the syllabus is being up when the 50% syllabus is covered. That depends on the number of students and how the students are requesting us and the status of the syllabus coverage. And apart from this, we also run the dedicated daily quizzes on the Telegram. Daily quizzes तो like general agriculture को चलते ही रहेंगे. उसके अलावा आप subject wise डेली क्विजेस भी होंगे जो स्केड्यूल करके बनाया होगा, एंड दिस विल बी फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर टेकिंग आवर कोर्स और नॉट. दिस विल बी फ्रीली अवेलेबल. लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू कैन अटेंड दिस फ्री मॉक टेस्ट फॉर प्लान्स एंड स्टूडेंट्स. यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप and WhatsApp group. So जो भी students, like the students will be willing to take the course or who will be taking the course will be added to a dedicated WhatsApp master group, जिसमें हमारा regular discussion होता है, जहाँ पे students discuss कर रहे होंगे, and our mentors will be guiding them about the correct answers and the reasonable explanation for all, so that these kind of things will boost the preparation of the student and will make him or her very satisfied with what he or she is learning. एंड रिगार्डिंग आवर एप्लीकेशन, आप हमारा जो प्लेटफॉर्म है कहाँ यूज़ कर सकते हो? यू कैन यूज़ आवर प्लेटफॉर्म इन एनी ऑफ द डिवाइसेस, स्टार्टिंग विद द मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल हो गया, iOS, एप्पल, लाइक मैकबुक, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, हर एक डिवाइस में आप यूज़ कर सकते हो हमारा प्लेटफॉर्म को इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन और द वेबसाइट. जो भी एप्लीकेशंस होंगे प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में मिलेंगे, वहाँ से आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो. और लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर के लिए, मैकबुक के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट, कोई भी ब्राउज़र से वेबसाइट विजिट करके जो www.agriedict.in है, वहाँ से आप हमारा कोर्स कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो. और लाइव क्लास को इधर आप लैपटॉप पे ज्वाइन कर सकते हो या आप मोबाइल पे भी कर सकते हो. ओके, and this is our complete platform is accessible across all the devices. Okay,
So now I'll just give you a quick details about the ICAR PG exam for the Shrestha batch. This is the batch for the 2025 exam. So जो 2025 exam का batch होगा, obviously the validity will be the 2025 exam day. जो 2025 का exam होगा तब तक, उस दिन तक ये वैलिड रहेगा. और इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, लाइक इसके अंदर आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास ऑफ 2024 पिछले साल का जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेस है वो सारा अभी मिल जाएगा आपको, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा भी होंगे जो ऑलरेडी कवर किए होंगे, उनको क्लासेस अभी चाहिए होगा इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड, सो दैट दे विल बी हेड इन द प्रिपरेशन. तो उनके लिए हमने ऐसा बनाया है कि 2024 का जो रिकॉर्डेड है वो ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, आप उसको कभी भी देख सकते हो, सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है. उसके साथ साथ 2025 का भी जो लाइव क्लास चल रहा है उसका भी कंप्लीट एक्सेस रहेगा. आप चाहे तो लाइव क्लास अटेंड करो या रिकॉर्डेड सुनो, प्रीवियस ईयर का रिकॉर्डेड सुनो और फ्रेश साल का रिकॉर्डेड सुनो. इसमें 2025 का लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा. सो दिस इज आवर फीचर्स एंड इट विल कवर, अगर प्लान साइंस की बात करूं, लाइक द प्लान साइंस कोर्स विल कवर द एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट द सिलेबस. लाइक जो भी सिलेबस का कंटेंट है सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच A to Z कवर कर दिया जाएगा एंड इट विल बी फिनिश्ड अप टू द मार्च. एंड नाउ इट इज Jan for 2025. By March all of our syllabus will completed. After that we'll be taking over revision. So if you are preparing for 2025 and if you are just starting your preparation, this is the best course for you. You can take the course and see the difference in your preparation. And if you are preparing for 2026, we have a dedicated course for 2026 because I have seen the people like previous year में ऐसा होता था कि हर कोई फोर्थ ईयर में आके प्रिपेयर करता था, लेकिन अभी स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लिया है. इसलिए हमने एक समर्था बैच को लॉन्च किया है जिसका वैलिडिटी होगा 2026 एग्जाम, मतलब इसमें 2 साल का वैलिडिटी रहेगा. इट हैज़ अ 2 years ऑफ वैलिडिटी एंड इफ यू आर टेकिंग इट नाउ यू विल बी गेटिंग द 2024 रिकॉर्डेड क्लासेस एंड 2025 लाइव कोर्स, द प्रेजेंट लाइव कोर्स प्लस 2026 लाइव कोर्सेस. दैट विल बी गिवन फॉर यू एज अ बोनस इन दिस समर्था बैच which is the foundation batch 2026. And if you are preparing for 2027, 2028, either you can go for foundation or the target batch and next you can renewal it on your exam year. Whenever you try to renewal our courses, you will be getting the flat 30% off on the renewal. While renewal, you just contact us on the below displayed WhatsApp number. Before you just try to purchase the course for the renewal, contact on this number, you will be getting up to 30% off on all our courses. Next, as I told you, the other type of course we have is the complete mock test bundle. इस complete mock test bundle में आपको क्या क्या मिलेगा, what you will get, you will getting the 50 plus mock tests around there are already 100 plus for the plan science actually. 100 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा, उसमें टॉपिक वाइज इंक्लूड रहेगा, सब्जेक्ट वाइज मतलब जेनेटिक्स का अलग, प्लांट पैथोलॉजी का अलग एंड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का अलग एंड सीड साइंस का अलग, सबका अलग अलग मॉक टेस्ट, लाइक ऑल सेपरेट मॉक टेस्ट विच आर सब्जेक्ट वाइज प्लस होल सिलेबस मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिलेगा. उसके साथ साथ जैसा मैंने बताया, लाइक यू विल बी ऑल्सो गेटिंग द डाउट क्लियरिंग सेशंस to solve all your doubts plus one-to-one mentorship and all this mock test will be according to syllabus pattern. ऐसा भी होता है कि आप लोग देखे होंगे कि काफ़ी अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो क्वेश्चंस बनाते हैं जिसमें आपको दिक्कत भी हुआ होगा कि काफ़ी कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो we have meticulously designed the mock test so that none of the questions will be irrelevant for you, and it doesn't mean that all of them will be easy. It will be easy, moderate, hard. All them will be mixed in a proper proportion so that it should actually feel that you are writing the ICAR PG exams. If you are feeling it, then only the mock test helps. So we and our mentors are trying our best to give this such type of mock test, and this is what we have given in the previous years. And the validity के अगर आप बात करेंगे, this is not exam to exam basis. If you are trying to take the mock test bundle, क्योंकि mock test काफ़ी अलग अलग रीजंस के लिए लेते हैं स्टूडेंट्स कि आपको किसी को ICAR PG एग्जाम लिखना होता है, किसी को कोई और एग्जाम लिखना होता है, लेकिन सब्जेक्ट्स ये सब चाहिए होगा. तो वी हैव मेड आवर वैलिडिटी फॉर 365 डेज. इसका वैलिडिटी रहेगा कंप्लीट 365 डेज तक, तो आप कभी भी इसको ले सकते हो. एंड आवर कोर्स आउटलाइन, तो मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा कि अगर आप लोग लाइक इफ यू आर टेकिंग अवर ऑनलाइन मास्टर कोर्स फॉर द प्लांट साइंस, हाउ इट विल बेनिफिट यू एंड हाउ इट विल मेक योर प्रिपरेशन ईजियर. तो दिस विल मेक योर ईजियर इन द वे दैट वी आर प्रोवाइडिंग जेनेटिक्स के लिए हम लगभग कितना क्लासेस दे रहे हैं, लाइक वी आर प्रोवाइडिंग अराउंड 50 to 60 क्लासेस फॉर जेनेटिक्स. सो द व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ सिंगल क्लास, इट विल बी 1 to 1.5 hour. तो 1 to 1.5 hour का ईच क्लास होगा जो टोटल में 60 होगा. तो यू हैव टू कंज्यूम अराउंड 90 hours on this genetics. That's it. Because if you are reading the BDC on your own, you will be spending up at least 2 to 3 months of time, but still you will not be satisfied. But if you take our online courses,
you can just cover the genetics from the scratch, everything in detail in just 90 hours. And in how many days you cover this 90 hours, it's completely up to you. And next, the plant breeding classes will be around 16 to 20 that you can easily cover within 25 to 30 hours. And the plant pathology classes will be around again 50 to 60 that you can cover in another 90 hours. And if you talk about the agriculture microbiology, that will be covered in 5 to 8 classes that mostly within the 10 hours you can cover it. And lastly, it's about the seed sensor technology. This will be covered in 16 to 20 classes, and heart to heart you have to spend 25 hours of your time to cover the complete seed sensor technology. This is about major subjects. And the minor subjects, if we will be giving the minor subjects like biochemistry, biotechnology and the plant physiology classes, all this will be covered in another 20 hours. If you are spending another 20 hours on this, so you will be able to cover all this. So along with this, with the mock test we provide, so you can cover the questions from the general agriculture part 2. So this is about our complete course outline. You will get this course outline even in our website and the mobile application if you just click on the course. If you click on the course, you can see the course outline, whichever classes are already completed and whichever classes are already uploaded. And all our topics are according to the standard books from which we are referring to. स्टैंडर्ड बुक्स जो भी आप पढ़ेंगे, जैसे बीडी सिंह आप पढ़ रहे हो तो जो हमारा क्लासेस होगा मोस्टली उसके अकॉर्डिंग ही होगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी होगा कि अलग अलग सोर्सेज से हमने कंपाइल करके क्लास करते ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो. सो दिस इज अबाउट आवर कोर्स आउटलाइन. और लाइव प्लस रिकॉर्ड कैसा दिखेगा? सो देयर विल बी लाइव इंटरफेस वेयर आई विल बी कमिंग ऑन द कैमरा एंड यू विल बी सीइंग द पीपीटी इंटरफेस थ्रू विच आवर मेंटर्स विल टीच यू. And in the coming years, we are also planning to go shift our complete system into the smart board that obviously need your support and encouragement. So if we have your support the way you are providing it now, we will definitely change our system to smart board in the near future, in the upcoming years. That we are going to do it. That's a promise. So we will be getting the live class recorded classes in this way, and the best study materials which are compiled to the form of the PDF. जो PDF होंगे वो application के अंदर ही available होंगे. You can download it through the mobile application, within the mobile application, but you cannot do it in the internal storage and take a printout available नहीं है, printing option नहीं है, लेकिन you can download within the mobile application or you can watch it in the laptop and study from there. And very soon we'll be coming up with our own study materials in the form of textbooks that will be available in the market after in the month of Feb and March. So anyone can purchase it by visiting our website. And if you need regular updates on what we are doing, just join our WhatsApp and Telegram channel, and also follow us on the Instagram and the subscribe YouTube channel. If you do all the 4 things, you will be getting the notification in one or the other platform. That's it. And all the links for the WhatsApp channel, Telegram channel, YouTube तो आप लोग देख रहे होंगे, उसके बाद the Instagram page. So all details are available in the description. You can just check it there. This is about materials, and as I told you, there are 50 plus mock tests are included here, which includes the topic wise, subject wise, whole syllabus and the general agriculture mock test. And जो mock test का interface होगा, this will actually simulate the actual exam that you are going to give for ICRPG. ICRPG का जो भी एग्जाम होगा, जैसा मैंने बताया, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जहाँ पे आपको लैपटॉप में या टैब में जाके एग्जाम देना होता है. जो वहाँ पे इंटरफेस रहेगा वो इंटरफेस ऑलमोस्ट सिमुलेट करके हम देंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, ताकि आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहो कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या क्या आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिलता है और कैसे इसको ऑपरेट करना है. आपका माइंड यहाँ से सेट हो जाएगा. नेक्स्ट, द प्रीवियस ईयर डिस्कशंस. सो एज आई टोल्ड यू, लाइक दिस पेपर्स आर अवेलेबल फ्रॉम 2022 लेटेस्ट. जैसे भी आप अगले साल हम जाते रहेंगे और आप वॉच करते रहेंगे, तो वी बी गेटिंग टू ऐड ऑल द लेटेस्ट ईयर मॉक टेस्ट, लेटेस्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. जैसे 2025 का आप 2025 एग्जाम के बाद ऐड करेंगे, 2026 का एग्जाम के बाद ऐड करेंगे, और ऐड करते ही रहेंगे. जो भी आपको फ्री में अवेलेबल रहेगा हमारे वेबसाइट www.agriedict.in पे, वहाँ पे प्रीवियस ईयर सेक्शंस पे, PYQPS सेक्शंस पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा. And the master course, so this is the master course which I was talking about. So I'll be just directly showing these things in the website so that you'll be able to understand it nicely. तो जब भी आप वेबसाइट ओपन करोगे टाइप करके www.agriedict.in, सो दिस इज आवर वेबसाइट. सो वंस यू क्लिक ऑन आवर वेबसाइट, डायरेक्टली यहाँ से भी आप कोर्सेज को सर्च कर सकते हो, वरना आप कोर्सेज पे क्लिक करो, यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करके आपका कैटेगरी जो भी है, पीजी कोर्सेज, पीएचडी कोर्सेज, एसआरबी. सो अभी मैं पीएचडी क्लिक करूँगा और इसमें आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि प्लांट साइंसेस कोर्सेज. अगर आप कैटेगरी में फिर से दबाओगे तो पता चल जाएगा कि इसमें 2 अलग अलग कोर्सेज है.
जहाँ पे टारगेट बैच 2025 है, फाउंडेशन बैच 2026 है। अगर जो भी अगले बैचेस आएंगे 2027 के, 2028 के, वो यहीं पे रहेंगे, तो आप यहीं पे आके फाइंड कर सकते हो, या डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करोगे द प्लांट साइंसेस कोर्स, जितने भी प्लांट साइंस का कोर्स है वहाँ पे दिख जाएगा, जिसमें आप ऑनलाइन मास्टर कोर्स 2025 इसको क्लिक करोगे तो वो कोर्स डायरेक्टली यहाँ पे दिख जाएगा। तो दिस इज द ऑनलाइन मास्टर कोर्स फॉर 2025। तो इफ़ यू क्लिक ऑन इट, जहाँ पे इसका कोर्स का प्राइस दिख रहा है, प्राइस थोड़ा टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, एंड दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मेंटर्स दैट विल बी ऑन द प्लेटफॉर्म। तो प्राइस के लिए आप यहाँ पे वेबसाइट और एप्लीकेशन को चेक करते रहिए, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप तुरंत ले लीजिए। एंड इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, कोर्स का क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स जो है इसमें लॉगिन के लेके डिस्क्रिप्शन तक, और जो कंटेंट हम कवर करेंगे उसका सारा डिटेल्स मिलेगा। जैसे कि आप पैकेज कंटेंट में क्लिक करोगे, यहाँ पे सीड साइंस का अलग से कोर्स है, और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का अलग से है, माइक्रोबायोलॉजी का अलग से है, और प्लांट पैथोलॉजी का अलग से है। जैसे कि अगर मैं जेनेटिक्स का जानना चाहता हूँ, तो इसका अगर आप अलग से लेना चाहोगे, लेकिन इफ़ यू आर वांटिंग टू परचेज दिस कोर्स सेपरेटली, अगर आपको प्लांट साइंस में सिर्फ जेनेटिक्स ही चाहिए, सिर्फ प्लांट पैथोलॉजी ही चाहिए, तो अलग से भी आप ले सकते हो, ओवरऑल आप प्लांट साइंस भी ले सकते हो। यू कैन टेक आइदर सेपरेटली और यू कैन टेक ओवरऑल कोर्स ऑफ प्लांट साइंसेस। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे कि आप देख रहे हो, लाइक कंप्लीट डिटेल्स आर मेंशन कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर, एंड आपने जो भी ऑलरेडी हमने कवर किया है, अगर आपको उसको अभी देखना है तो दिस इज द कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट में जेआरएफ सिलेबस दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ बुक्स का डिटेल्स दिया हुआ है, और स्केड्यूल भी दिया गया है, जो स्केड्यूल होगा वो दिया है, और डाउट सॉल्विंग जो बने थे वो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, दैट इज ऑलरेडी बीन अपलोडेड। सो लाइव क्लास विच आर बीइंग टेकन फॉर 2025, ऑल दिस लाइव क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स अप टू द लेटेस्ट विच इज बीइंग कवर्ड आर, यू कैन एबल टू सी द नेम्स हियर। तो अगर आप ज़्यादा स्क्रॉल करोगे तो 2024 का जो ये मॉक टेस्ट है उसके आगे आपको पिछले साल का जो भी हमने कवर किया था वो सब यहाँ पे दिख जाएगा, कि देखो क्लासेस प्लस नोट्स, एंड दिस इज फ्रॉम जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग। ये इंग्लिश और हिंदी के लिए, सबके लिए अलग अलग से इसी पे अवेलेबल रहेगा, बोथ फॉर द इंग्लिश एंड हिंदी, both the classes will be available at a separate heading in the same course. This is for all the different courses which I am talking about. I hope you people have understood it nicely. And next, जैसे मैंने बताया कि अगर if you want to read the blocks, you can just click on the blocks and categories and read this. If you want to download the study planners for different subjects like plant sciences, you can click on download and download the study planners. So these study planners will help you in your preparation, to boost your preparation. And अगर आपको syllabus का download चाहिए तो you can come and download here. एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स का अगर चाहिए, यू कैन क्लिक एंड डाउनलोड हियर। एंड बुक्स का लिस्ट अगर पीडीएफ में फॉर्म में चाहिए, इट इज डाउनलोडेबल, यू कैन कम एंड डाउनलोड हियर। एंड सोशल मीडिया, लाइक इफ यू आर वांटिंग टू जॉइन व्हाट्सएप चैनल, द व्हाट्सएप ग्रुप, द टेलीग्राम ग्रुप, द इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक्स एंड जॉइन अवर प्लेटफॉर्म। So that's it about all the course content which I wanted to tell you people. And इसके अलावा अगर आपको भी कुछ भी डाउट्स हो, then you can contact me anytime through this YouTube video, or you can directly contact me on this below displayed WhatsApp number. So our team will reply you within 24 to 48 hours. एंड आपका जो भी प्लान साइंस के रिलेटेड क्वेरीज है, जो आपको लगता है कि मैंने कवर नहीं किया है इस वीडियो पे, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मैंने कवर नहीं किया है, इफ़ यू फील लाइक समथिंग आई हैव नॉट कवर्ड इन दिस वीडियो, जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट। तो कूपन कोड जो मैं बोल रहा था कि जो वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, अगर आपने अभी तक हमारा कोर्सेज नहीं लिया है तो यू कैन यूज दिस कूपन कोड ऑफ ARI 600 on the plant science. So this is only for the plant sciences. If you are taking the separate individual courses of genetics and plant breeding, the plant pathology, then this code is not available. But if you are taking the complete package of the plant sciences of target batch 2025 or the foundation batch 2026, then this coupon will be available. You have to just type ARI 600 and get the 600 rupees off on our online master course for the plant sciences. I hope I have clearly explained everything in detail about the how to prepare for this exam, plant sciences. My motive was the student whoever watches this video by spending 1 to 2 hours should get the complete understanding about what is this subject, what are the different sources, what is the exam syllabus, and how to tackle it and how to prepare for this exam. I hope like आपका जो भी डाउट्स है क्लियर हुआ है। अगर कुछ होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। Thank you so much for watching this video. I will meet you in the next video. The next video जेनेटिक्स का होगा, उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग का होगा, और उसके बाद जो भी रिविजन सीरीज है वो सब यूट्यूब में अपलोड करते रहेंगे। So we
but only expect your support and encouragement to our platform. Thank you.